Okay. Good morning. Very warm welcome to sir. Today we have with us a eminent speaker, our guest lecturer, Professor Sunil Datta Shukla sir, a Department of Zoology, Government Meera Girls College, Udaipur. Sir have a career spanning over 2 decades, a relentless pursuit of knowledge and unwavering commitment to research, keeping him going in academics and scientific community. The academic journey begins with a solid foundation in zoology, which laid the groundwork for future accomplishments. His skill and expertise through rigorous training at the Department of Zoology, Mohanlal Sukhadia University, Udaipur, during his post-graduation and doctoral degree. Years later at various renowned institutions both in India and abroad, the multidimensional education spanning various facets of life sciences prepared Sir to address complex challenges in the area of specialization. Sir have published more than 33 research papers on neuroprotection, herbal medicine, and environmental science. Sir have also authored a book and 3 book chapters. His academic prowess has been recognized through a couple of awards. The International Brain Research Organization Travel Fellowship in 2006 marked a pivotal movement in his career, allowing him to explore and collaborate on an international stage. The National Brain Research Center India Fellowship in 2000, awarded by the Department of Biotechnology and the National Brain Research Center India, showcased his competence in neuroscience research at the National Center of Biological Science, NCBS, Bangalore. The coveted Professor T. Desi Raju Memorial Award in 1999 from the Indian Academy of Neuroscience stand as a testament to his contribution to the field. Sir is also active member of numerous professional bodies. His involvement in society, International Society of Zoological Sciences, Molecular and Cellular Congregation Society USA, International Brain Research Organization, and the Indian Academy of Neuroscience underscores his dedication to the scientific community growth and development. Beyond his academic endeavors, he is also devoting his time to helping achieve excellence in the field of higher education in Rajasthan in association with the state level quality assurance cell at the Department of College Education, Government of Rajasthan, Jaipur, providing guidance to government institutions for quality assessment and aiding them in obtaining NAAC accreditation and NIRF ranking. He served as the section editor of Neuroscience Insight at Sage Journal. He is also a reviewer of established publishers like Elsevier, Sage, and Wiley, reflecting his staging in scientific community. On behalf of Research Department, University of Kota, I welcome you, sir. Today, sir will speak on the topic quantitative and qualitative research. Sir, please start the session. Thank you, sir. Thank you, Divya, for such a nice gesture. And I'm thankful to Kota University for inviting me a lecture on the qualitative research in science. I'm also thankful to Vipul and the research board of the university. So, before beginning, I would like to ask you whether I should go with the English or should I use the mixed language? Any one of you can tell me. सर bilingual है वैसे तो. Bilingual will be better, I जी जी. feel, because the जी जी people सर. are from diverse background, so bilingual will be there, will be okay. हाँ जी So, सर. without wasting time, I'll start with my presentation. Uh,
I'm just sharing my screen now. Is it visible to all of you? Yes, sir. Yes, Yes, sir, sir. visible. I hope it is visible to all of you. Yes, sir. Probably we may have some of the disturbances with because of network or any other thing. So Yes, sir. pardon me for that. I should start directly with my topic, what has been assigned to me by the University of Kota. So basically, we all deal with the science. जैसा मुझे बताया गया है. All are the science students, right? Yes, sir. Right. जी sir. So, जी sir. there is a small thing which is with the science, and most of the people don't believe that the qualitative research is not possible in the science, because almost science students feel that we have to play with the data or something like that. But small things are available for the qualitative research. I do my research. Yeah, मेरा research जो है that is more devoted to the quantitative. But nowadays I am doing some of the qualitative research also, because I feel कि ये area भी बहुत जरूरी है. मेरा पूरा लेक्चर जो होगा वो दो हिस्सों में बटा हुआ होगा. पहले हिस्से में हम क्वांटिटेटिव और क्वांटिटेटिव रिसर्च के बारे में बात करेंगे, और उसके बाद में प्योरली क्वालिटेटिव रिसर्च की बात करेंगे, और उसके क्या क्या पैराडाइम्स है, क्या क्या उसके हिस्से हैं, उसके बारे में हम बात करेंगे. सो स्टार्ट विद दिस. आप लोग पहले पार्ट में जो लिखेंगे या पाएंगे कि क्वालिटेटिव रिसर्च क्या है, या हमारे लर्निंग आउटकम में हम देखेंगे क्वालिटेटिव रिसर्च क्या होती है. व्हाट आर द डिफरेंसेस बिटवीन द क्वालिटेटिव एंड क्वांटिटेटिव रिसर्च. बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ क्वालिटेटिव स्टडीज हम करेंगे, और उसके बाद में चूंकि हम क्वालिटेटिव स्टडीज की जब बात करते हैं तो हमारे पास तीन चीजों की बहुत ध्यान रखना पड़ता है. दैट इज बायसनेस, ट्रायंगुलेशन एंड ट्रस्टवर्दीनेस. कि हम जितना भी काम कर रहे हैं क्वालिटेटिव रिसर्च में, वो हमारा कितना सही ठहरता है साइंटिफिक डोमेन के अंदर. तो इस बारे में हम लोग बात करेंगे. तो चार चीजें पहले लेक्चर का पार्ट है. मैं एक छोटा सा केस स्टडी लेता हूँ शुरुआत करने से पहले. एंड इन दिस केस स्टडी आई हैव टेकन वन एग्जांपल ऑफ मलेरिया, बिकॉज आई एम अ स्टूडेंट ऑफ बायोलॉजिकल साइंसेस. तो मुझे लगता है कि थोड़ा सा मेरे लिए कंफर्टेबल होता है बायोलॉजी की बात करना, या एरिया जो कि मेडिकल साइंस से या इससे रिलेटेड है उससे बात करना मेरे लिए थोड़ा सा ज्यादा आसान होता है बनिस्बत की हार्डकोर फिजिक्स या केमिस्ट्री की बात करना. सो कुछ रिसर्चर्स रिसर्च कर रहे थे, और उन्होंने पाया कि ग्रामीणों ने उनको कहा, या उनके गांव के लोगों ने कहा कि भाई हमको बुखार रहता है या मलेरिया रहता है. तो उन्होंने बुखार रहता है, तो उन्होंने एक काम किया कि भाई इनका सबका ब्लड टेस्ट करें, बिकॉज वन ऑफ द पॉसिबल रीजन फॉर द मलेरिया इज द फीवर इज मलेरिया. तो ब्लड टेस्ट किया, उन्होंने पाया, और उन्होंने कहा, पूछा कि भाई कैसे रुक सकते हैं. तो उन्होंने उनको एक चीज एडवाइस की कि भाई आप एक काम कीजिए कि आप मच्छरदानी लगाना शुरू कर दीजिए. मच्छरदानी जब उन्होंने लगाना शुरू किया, तो इस छोटी सी कहानी में यह है कि कुछ समय बाद कुछ लोगों ने मच्छरदानी काम लेना बंद कर दिया. अब काम लेना बंद कर दिया बिकॉज कि उनको लगा कि ये मच्छरदानी जो है वो बुखार नहीं रोक रही, लेकिन उनको नहीं पता था कि उसके पीछे मलेरिया है. बुखार नहीं रोक रही, तो इसलिए उन्होंने मच्छरदानी को बंद काम लेना बंद कर दिया. तो अगर हम कहें कि पॉसिबल रीजंस क्या हो सकते हैं इस पूरे प्रोसेस के अंदर कि उन्होंने मच्छरदानी को काम लेना बंद कर दिया, कि पॉसिबल कारण क्या क्या हो सकते हैं उसके पीछे. तो अगर हम देखें तो पॉसिबल रीजंस जो है कि एक तो पहली चीज की रिसर्चर जो है उन्होंने उनको नहीं समझाया कि बेसिकली बुखार और मलेरिया के बुखार में फर्क होता है, कि सामान्य बुखार जिसको कि हम पायरेक्सिया कहते हैं उसके बुखार में फर्क होता है. तो इन सारी चीजों के लिए उन्होंने इस चीज को लेना शुरू कर दिया. उसके बाद एम आई ऑडिबल? Yes, sir. ओके फाइन. Yes, sir. हाँ, तो उन्होंने पाया कि भाई उन्होंने उस चीज को समझा नहीं पाया उनको कि मलेरिया और बुखार में अंतर होता है. तो उस चीज को लेके उन्होंने थोड़ा सा मच्छरदानी को काम में लेना बंद कर दिया. तो हम कैसे पता कर सकते हैं कि ये सारी चीजें हुई होगी.
तो बेसिकली ये सारा डोमेन या ये सारी चीजें जो है या ये छोटी सी कहानी जो है वो क्वालिटेटिव रिसर्च के आसपास घूमती है। अगर मैं क्वालिटेटिव रिसर्च की बात करूं तो इन डेप्थ नॉलेज या इंफॉर्मेशन जो है वो लोगों से प्राप्त कर, मोस्ट ऑफ द टाइम जब हम साइंस वाले स्टूडेंट्स होते हैं या हमको रिसर्च के लिए कहा जाता है तो हमको ये कहा जाता है कि यू हैव टू जनरेट डेटा। अब वो डेटा आप एक्सपेरिमेंटेशन से जनरेट करते हैं या आप फील्ड सर्वे से जनरेट करते हैं या आप जीआईएस के थ्रू जनरेट करते हैं, किसी भी तरीके से हम लोग को डेटा जनरेट करने के लिए कहा जाता है। बट मोस्ट ऑफ द टाइम वी आर नॉट लुकिंग एट द क्वालिटेटिव रिसर्च। लेकिन जो क्वालिटेटिव रिसर्च जो है वो बेसिकली इस चीज को जानने के लिए बनी होती है कि क्यों, व्हाई इज द बेसिक क्वेश्चन इन दिस, कि लोग एक बेसिक क्वेश्चन होता है क्योंकि हम जब भी क्वालिटेटिव रिसर्च की बात करते हैं, क्योंकि इसके एक मेजर एस्पेक्ट जो होता है दैट इज पर्सन और द पीपल दोज हु आर अफेक्टेड विद दिस थिंग। तो उस चीज के बारे में हम उनसे बात करते हैं, तो उनसे बात करने के बाद में हम इस चीज को निकालते हैं। नॉर्मली इट इज अ काइंड ऑफ सोशल इंक्वायरी, कि जब भी हम आपस में बात करते हैं या किसी तरीके की चीजें हैं तो जब हम एक सोशल इंक्वायरी करते हैं तो उसको हम इंटरप्रेट करते हैं और वो उस सोसाइटी के बारे में, उस पर्टिकुलर एस्पेक्ट के बारे में जिसके ऊपर आप काम कर रहे हैं, बिकॉज कि मैं बहुत सारी चीजें यहाँ डिटेल में नहीं ले सकता, लेकिन उस पर्टिकुलर एस्पेक्ट के बारे में आप बात करते हैं, उनसे उनसे जानते हैं, उनके कल्चर से इन सारी चीजों को जानते हैं, तो वो जो हिस्सा या जो आपके पास रिजल्ट्स आते हैं वो क्वालिटेटिव रिसर्च का पार्ट होता है। अब क्वालिटेटिव रिसर्च जो है क्वांटिटेटिव रिसर्च मेथड से थोड़ी सी अलग होती है। क्वांटिटेटिव रिसर्च मेथड्स में भी सर्वे किए जाते हैं, यहाँ भी सर्वे किए जाते हैं। क्वांटिटेटिव रिसर्च में केस कंट्रोल स्टडीज ली जाती है, यहाँ भी केस कंट्रोल स्टडीज ली जाती है। बट एक जो बड़ा फर्क आता है कि क्वांटिटेटिव और क्वालिटेटिव रिसर्च करना, जो कि हम आगे की तरफ भी देखेंगे, कि वहां पे जब हम क्वांटिटेटिव रिसर्च करते हैं तो बेसिकली वी डू द रैंडम सैंपलिंग, हम वहाँ रैंडम सैम्पलिंग करते हैं। लेकिन यहाँ पे हम जो है वहाँ बहुत सारे लोगों के बारे में बात करते हैं। वी डोंट मच केयर अबाउट द सैम्पलिंग मेथड्स, कि बहुत सारे सैम्पलिंग मेथड्स के बारे में हम बहुत ज्यादा बात नहीं करते। तो यहाँ जो अगर मैं बात कहूँ कि एक बेसिक मोटा मोटा फर्क जो आता है इनके बीच में, वो क्वांटिटेटिव अप्रोच जो है वो मैनी टाइप ऑफ रिसर्च प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए काम में आती है, जबकि क्वालिटेटिव रिसर्च जो है वो डिफरेंट टाइप ऑफ क्वेश्चंस के ऊपर बेस होती है। आगे की तरफ हम देखेंगे कि डिफरेंट टाइप ऑफ क्वेश्चंस के ऊपर कैसे बेस होती है। एंड सेकेंडली वी क्रॉस एग्जामिन, कि कुछ चीजें हम क्रॉस एग्जामिन भी करते हैं क्वालिटेटिव रिसर्च में, बिकॉज कि जैसा हमने पहले कहा कि हमको बायसनेस को रिमूव करना है या ट्रायंगुलेशन का ध्यान रखना है, तो उस चीज को रिमूव करने के लिए हम एक ही क्वेश्चन को डिफरेंट डिफरेंट तरीके से भी पूछ सकते हैं उसके अंदर, एंड दैट इज जस्ट टू रिमूव द बायसनेस और डिफरेंट टाइप ऑफ क्वेश्चंस के बारे में बात करते हैं। क्वालिटेटिव रिसर्च टेक्निक्स की बात करूं तो व्हाट आर द मेथड्स, अगर मैं कहूं तो बहुत सारे मेथड्स इसके अंदर होते हैं। एक मेथड जो होता है दैट इज कन्वर्सेशन और डिस्कोर्स जो एनालिसिस होता है, कि यदि हम किससे बात करते हैं या किसी से चर्चा करते हैं किसी ऊपर चीज के ऊपर, तो दैट इज कन्वर्सेशनल एंड डिस्कोर्स एनालिसिस होता है। सेकेंडली अगर हम बात करें तो देर आर सर्टेन पार्टिसिपेंट ऑब्जर्वेशंस, कि अगर आप किसी जगह पे रिसर्च कर रहे हैं या किसी चीज को ऑब्जर्व कर रहे हैं तो वो आपका ऑब्जर्वेशन जो है या पार्टिसिपेंट्स को ऑब्जर्व करना है, तो वो सारी चीज। तीसरी टेक्निक जो इन्वॉल्व होती है इसके अंदर दैट इज सर्वे, कि सर्वे को आप इन्वॉल्व करते हैं, डिफरेंट काइंड ऑफ सर्वेज, और वो सर्वेज हो सकते हैं वर्बल भी हो, पेन पेपर भी हो, और आज की तारीख में ऑनलाइन का जमाना है, डिजिटल युग है, तो डिजिटल सर्वे भी हम लोग करते हैं इसके साथ। फोर्थ एस्पेक्ट और फोर्थ टेक्निक इज दैट द डॉक्यूमेंट्री और आर्काइवल रिसर्च, कि हम लोग पुराने रिसर्च के हिस्से को या पुराना जो भी पब्लिश हो चुका है उसके बारे में पढ़ते हैं। मोर और लेस वी ऑल डू दिस काइंड ऑफ थिंग, कि हम सभी जने इस तरीके की डॉक्यूमेंट्री और आर्काइवल रिसर्च जो है वो करते हैं, कि जब भी हमको एक प्रॉब्लम दिया जाता है तो हमको उस प्रॉब्लम के साथ में कहा जाता है, जब भी हमारे गाइड हमको असाइन करते हैं किसी प्रॉब्लम को या आप खुद चुनते हैं किसी प्रॉब्लम को, तो आप सभी जने या इंक्लूडिंग मी, हम सभी जने डॉक्यूमेंट्स पढ़ते हैं। दैट मीन्स आई मीन टू से कि कुछ किताबें, कुछ रिसर्च पेपर्स और इन सारी चीजों को पढ़ते हैं, और उसके बाद में हम एक पर्टिकुलर एस्पेक्ट पे पहुंचते हैं, और या हम एक हल्का कंक्लूजन डिराइव करते हैं या एक हाइपोथेसिस डिराइव करते हैं ऑन द बेसिस ऑफ दैट डॉक्यूमेंट्री एंड आर्काइवल
रिसर्च जो हमने उसको पढ़ा है। एक अलग टेक्निक और होती है, दैट इज ऑडियो विजुअल एनालिसिस की। कई बार ऑडियो विजुअल एनालिसिस के द्वारा भी हम इसको करते हैं। ओरल हिस्ट्री जो है, उस ओरल हिस्ट्री के अंदर कि हम किन किंवदंतियों के साथ में भी हम इन चीजों को करते हैं। इफ यू हैव द फोकस ग्रुप्स, उसके बारे में हम बात करते हैं। डिफरेंट केस स्टडीज होती है, इंटरव्यूज होते हैं और बायोग्राफीज है, उसके बारे में। सपोज इफ यू आर डूइंग सम हिस्ट्री ऑफ साइंस, तो आपको बायोग्राफीज के लिए बहुत ज्यादा पढ़ना पड़ जाता है, तो दैट इज वन। तो ये डिफरेंट डिफरेंट टेक्निक्स उसके साथ में होती है। अब अगर हम कहें कि क्वालिटेटिव रिसर्च जो है, बेसिकली उसकी रिसर्च मेथोडोलॉजी डेवलप करने के लिए देयर आर टू थिंग्स व्हिच आर वेरी इंपॉर्टेंट। वन इज कॉल्ड एज ontology एंड अनदर इज कॉल्ड एज epistemology। ontology डील्स कि व्हाट डू वी नो अबाउट द रियलिटी, कि हम रियलिटी के बारे में क्या जानते हैं, कि क्या वास्तव में है। epistemology, हाउ डू वी नो अबाउट दिस रियलिटी या व्हाट एवर इज द रियलिटी। अगर मैं ऑन्टोलॉजी की बात करूं तो एक छोटा सा एग्जांपल जो हम सबको कहा जाता है कि पुरातन काल में ये समझा जाता था कि धरती फ्लैट है या चपटी है, बट दैट डजंट स्टैंड ट्रू। बाद में हमको पता चला कि ये सारी चीजें जो है वो सही नहीं है। तो उसके बारे में हमने कैसे जाना, तो इन दोनों चीजों के बारे में जब हम प्रयास करते हैं या इस चीज को हम जानने की कोशिश करते हैं, तो वी डेवलप अ मेथोडोलॉजी। क्योंकि हमको एक क्वेश्चन का आंसर देना है, एक जो हमने धारणा बनाई उसका आंसर देना है, तो वो मेथोडोलॉजी के साथ में करते हैं। एंड दैट मेथोडोलॉजी इन्वॉल्व्स द फिलोसॉफिकल थ्योरेटिकल ग्राउंडेड अप्रोच टू द रिसर्च मेथड्स। कि हमारे जो डिफरेंट डिफरेंट रिसर्च मेथड्स हैं, जिनके ऊपर की हमने ऊपर की तरफ बात की थी कि जितने भी मेथड्स हमारे पास अवेलेबल है, ये सारे मेथड्स या इनके अलावा भी कोई और मेथड्स हो सकते हैं, तो उसके आधार पे हम जो है वो मेथोडोलॉजी डेवलप करते हैं और उसके बाद में हम उसको प्रूव करने की कोशिश करते हैं। अब क्वालिटेटिव रिसर्च मेथड्स की बात करूं तो बेसिकली देयर आर फोर की फीचर्स ऑफ द क्वालिटेटिव रिसर्च। वन इज कॉल्ड एज क्वालिटेटिव डेटा, स्टडिंग नेबुलस और सब्जेक्टिव फिनोमिनन, कि हमारे पास जितने भी सब्जेक्टिव फिनोमिनन है उसके ऊपर बात करते हैं, हम ऑब्जेक्टिविटी की बात नहीं करते हैं। इरेशनल, इलॉजिकल एंड इमोशनल फिनोमिनन की बात करते हैं और कॉम्प्लेक्स फिनोमिनन की बात करते हैं। अब जब हम क्वालिटेटिव डेटा की बात करते हैं तो क्वालिटेटिव डेटा कैन बी नॉन न्यूमेरिकल डेटा, बिकॉज एवरीथिंग इन द वर्ल्ड इज अ डेटा। कि किसी भी तरीके की कोई भी चीजें, इवन राइट नाउ व्हेन आई एम स्पीकिंग एंड आई एम टॉकिंग विद यू पीपल, तो ये भी एक तरीके का डेटा है। वो नॉन न्यूमेरिकल डेटा की बात करते हैं हम क्वालिटेटिव डेटा में। हम उसके अंदर अंडरस्टैंडिंग, रिलेशनशिप, एक्सपीरियंस और डिफिकल्ट टू पिन डाउन द फिनोमिनन जो है उस चीज की बात करते हैं। सब्जेक्टिव होता है, जैसे मैंने कहा कि ऑब्जेक्टिव नहीं होता है, प्लस इसके साथ ह्यूमन अप्रोच होती है, प्लस डिस्क्रिप्टिव होता है। अगर हम कहें कि ह्यूमन अप्रोच होती, तो जब हमने कहा कि वी टेक द इंटरव्यूज, वी ऑब्जर्व द पार्टिसिपेंट्स, तो वो सारी चीजें इसके साथ में आती है। सब्जेक्टिव फिनोमिनन की बात करें तो कॉमन सेंस जो है वो यहाँ नहीं होता। रिगरस रिसर्च टेक्निक्स, डिफरेंट रिसर्च टेक्निक्स जो है हम उसको अपनाते हैं। साइंटिफिक प्रिंसिपल और थ्योरीज के ऊपर आधारित होता है। ओपन एंडेड रिसर्च होती है, दैट मीन्स यू आर ऑलवेज रेडी टू एक्सेप्ट द रिजल्ट्स, कि जिस भी तरीके के आपके रिजल्ट्स आ रहे हैं उनको एक्सेप्ट करने के लिए होता है। और अनबायस्ड टेक्निक्स को इस्तेमाल करना पड़ता है, और एक्सप्लोरेटरी टेक्निक्स जो है हम इसके अंदर इस्तेमाल करते हैं। कई बार होता है कि हम इरेशनल, इलॉजिकल और इमोशनल फिनोमिनन को भी इसके अंदर इंक्लूड करते हैं, जिसमें कि सोशल, कल्चरल, इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल चीजें भी आती। राइट नाउ अगर अभी मैं कहूँ तो नाउअडेज हॉट केक इन द रिसर्च फॉर द बायोलॉजिकल साइंसेज इज द कोविड। और उस कोविड वाले पार्ट में जब भी हम बात करते हैं तो सोशल, कल्चरल, इकोनॉमिकल और पॉलिटिकल डेटा को भी हम इंक्लूड करना चाहते हैं। मिथ्स, फैक्ट्स और डिजायर्स को इंक्लूड करते हैं, एनालिटिकल प्रिसिशन लाते हैं, और लॉन्ग टर्म एम्पेरिकल, लॉन्ग टर्म जो है रिसर्च होती है, ये न कि 2 महीने की या 3 महीने की, लॉन्ग टर्म रिसर्च होती है। एम्पेरिकल, व्हाट यू लर्न बाय योर एक्सपीरियंस, उनके साथ में होती है। लोगों के साथ में इन डेप्थ रिसर्च या उनके साथ में या सोसाइटीज के साथ में या कल्चर के साथ में की जाती है। कई बार हम कॉम्प्लेक्स फिनोमिनन इसके साथ में करते हैं। तो मेजरली जब हम बात करते हैं तो डिस्पर्शन या मल्टीपल वांटेज पॉइंट्स को भी हम इसके साथ में डिस्कस करते हैं। स्पेसिफिकली अगर मैं ये कहूँ कि कॉम्प्लेक्स फिनोमिनन की जब हम बात करते हैं, नॉर्मली इट इज यूज्ड टू स्टडी द हिस्ट्री ऑफ साइंस या सोसाइटीज है, पॉलिटिक्स है, इंडिविजुअल एंड कलेक्टिव।
nowadays politics in science is again there, तो उस चीज की बात करते हैं. It is quite possible your topic or your title of the thesis may vary from this, because कि experimental data आपको दिया गया होगा या experimental techniques कही होगी, बट हो सकता है कि कहीं ना कहीं किसी न किसी रूप में आप इन 4 की फीचर्स में से किसी एक की फीचर का आपने उसके अंदर इस्तेमाल किया. नाउ हम लोग जब बात करेंगे तो क्वालिटेटिव और क्वांटिटेटिव रिसर्च की बात करेंगे. इसमें हम अलग अलग जो डोमेन्स हैं उसकी बात करेंगे. पहला की एम क्या होता है, तो हम क्वालिटेटिव रिसर्च की बात करते हैं तो इट इज एक्सप्लोरेशन ऑफ पार्टिसिपेंट एक्सपीरियंसेस एंड लाइफ. हम यहाँ जब बात करते हैं तो बेसिकली वी टॉक अबाउट द एक्सपीरियंसेस ऑफ द पीपल, बट वहां पे जब हम क्वांटिटेटिव की बात करते हैं तो हम कैजुअल एक्सप्लेनेशंस के बारे में बात करते हैं. We take a small example for exploration of participant and experiences. ये जो qualitative data और world life की बात करते हैं. Some people start traveling. हम लोग अभी travel करना शुरू करते हैं. There are different classes of available in the trains of India. कि अलग अलग classes available हैं. और जो अलग अलग क्लासेस अवेलेबल है तो हम कहें कि जनरल क्लास अवेलेबल है, सेकंड क्लास अवेलेबल है, फिर उसके बाद में 3 टायर एसी अवेलेबल है, फिर 2 टायर एसी अवेलेबल है, फर्स्ट क्लास अवेलेबल है, एंड देन फर्स्ट क्लास एसी इज अवेलेबल है. लेकिन जब हम इसके अंदर बात करते हैं तो उनके एक्सपीरियंसेस को कि हाउ दे शेयर एंड हाउ दे एक्सपीरियंस ट्रेवलिंग इन द डिफरेंट क्लासेस, कि उनको शारीरिक कष्ट क्या हुआ. सपोज किसी को पीठ का दर्द होता है, किसी को सर्दी जुकाम हो जाता है इस मौसम के अंदर, अगर वो जनरल क्लास में ट्रेवल कर रहे हैं या सेकंड क्लास में ट्रेवल कर रहे हैं, तो उनके एक्सपीरियंसेस को जब शेयर करते हैं तो दैट कम्स इनटू द क्वालिटेटिव एक्सपीरियंस. ऑल्दो हमारे यहाँ पे इस तरीके के रिसर्च नहीं किए जाते हैं सामान्यतः, तो आपको हो सकता है कि ये थोड़ा सा एग्जाम्पल वियर्ड लगे. फिर जितने एक्सपीरियंसेस हम उनके साथ में शेयर करते हैं या वो हमारे साथ शेयर करते हैं या हमको बताते हैं, तो उससे हम एक समझ डेवलप करते हैं अपनी कि भैया हाँ ये इस तरीके की चीजें. फिर उसके बाद हम एक थ्योरी जनरेट करते हैं कि फला क्लास में ट्रेवल करने से फला परेशानी व्यक्ति को होती है, तो इसके साथ में हम इस चीज को कर सकते हैं. लेकिन जब हम उसी की तरफ दूसरी तरफ बात करते हैं तो वी टेस्ट द हाइपोथेसिस. सपोज अगर हमने कहा कि कमर दर्द होना शुरू हो गया, तो यहाँ पे हम कमर दर्द की जब बात करेंगे तो इन जनरल बात करेंगे, बट जब हम क्वांटिटेटिव में बात करते हैं तो वी मेक डिफरेंट ग्रुप्स की मेल फीमेल का ग्रुप बना लिया, आपने एज वाइज ग्रुप बना लिया या आपने सेक्स वाइज ग्रुप बना लिया. तो इस तरीके की चीजें कि अपर बर्थ, मिडिल बर्थ, लोअर बर्थ पे कोई ट्रेवल कर रहा है, तो इस तरीके की चीजें वहां पे होती है. दैट इज दैट टाइप. तो वहां पे हम हाइपोथेसिस टेस्टिंग करते हैं. यू नॉर्मली अप्लाई व्हाटएवर स्टैटिस्टिकल टेस्ट आर अवेलेबल टू यू एंड व्हाटएवर स्टैटिस्टिकल टेस्ट सजेस्टेड टू यू उसके साथ. दूसरा, ये हमेशा जो क्वालिटेटिव रिसर्च होती है दैट इज एक्सप्लोरेटरी, कि आप उसको एक्सप्लोर करते हैं. हो सकता है कि एरिया वाइज आपके एक्सपीरियंसेस अलग हो, लेकिन जब हम क्वांटिटेटिव रिजल्ट्स की बात करते हैं तो ऑन द बेसिस ऑफ स्टैटिस्टिकल टेस्ट हम कंफर्मेटरी रिजल्ट्स के बाद में कहते हैं. 1 मिनट आप होल्ड करेंगे. somebody is calling regularly to me. हेलो हेलो, हाँ जी. सर ये आर्ट्स वाले क्लास अटेंड कर सकते हैं? हाँ ऑब्वियसली दे कैन, बिल्कुल कर सकते हैं, मेरे लिए कोई मनाही नहीं है. आर्ट्स के लिए दूसरा लिंक दिया हुआ है. दूसरा लिंक दिया हुआ है तो यू प्लीज शेयर द सेम लिंक टू द आर्ट स्टूडेंट. सर वो इट इज ऑलरेडी शेयर्ड इन द ग्रुप. प्लीज आप लोग वहां पर ही चेक कर रहे हैं. आर्ट स्टूडेंट के लिए अलग. हाँ बिल्कुल अटेंड कर सकते हैं, वो मेरी तरफ से कोई मनाही नहीं है. बिकॉज कि एक के लिए बोलिए या 100 के लिए बोलिए, बात तो एक ही है. चलिए तो हम आगे चलते हैं. दूसरा जो है वो अप्रोच की बात है कि हम कैसे उस प्रॉब्लम को या कैसे अप्रोच करते हैं. तो बेसिकली यहाँ पे जब हम क्वालिटेटिव की बात करते हैं तो वी हैव अ ब्रॉड फोकस, कि हमारा वो जो एरिया होता है या वो चीजें जो होती है वो बड़ी और बहुत ज्यादा मात्रा में, बट यहाँ पे हमारा फोकस जो है वो नैरो करते जाता है. जैसे मैंने आपको कहा कि आप सेक्स वाइज कंपेयर करते हैं, आप एज वाइज कंपेयर करते हैं, या आप किसी और तरीके से कंपेयर करते हैं, तो वो सारी चीजें. सेकेंडली अप्रोच इज ऑलवेज प्रोसेस ओरिएंटेड, और यहाँ पे क्वांटिटेटिव में है दैट इज प्रोडक्ट ओरिएंटेड. दैट मीन्स
क्वालिटेटिव डेटा में या क्वालिटेटिव रिसर्च में हम मेथडोलॉजी पे ज्यादा ध्यान देते हैं बाकायदा के रिजल्ट्स के। बट जब हम क्वांटिटेटिव अप्रोच करते हैं तो प्रोडक्ट ओरिएंटेड हम या उसके रिजल्ट्स के ऊपर ज्यादा ध्यान देते हैं। कॉन्टेक्स्ट के साथ में जुड़ी रहती है क्वालिटेटिव अप्रोच। क्वांटिटेटिव अप्रोच कॉन्टेक्स्ट फ्री होती है बिकॉज यू आर अप्लाइंग स्टैटिस्टिकल टेस्ट एंड स्टैटिस्टिकल टेस्ट जो है वो उसको नलीफाई करते हैं। नॉर्मली यू गेट क्लोज टू द डेटा। और क्वांटिटेटिव रिसर्च की अगर हम बात करते हैं दैट इज आर्टिफिशियल और लेबोरेटरी सेटिंग में ज्यादातर परफॉर्म की जाती है। सैंपल जो होते हैं नॉर्मली हमारे पास उनको हम सिर्फ अलग अलग नाम से पुकारना शुरू कर देते हैं, दैट इज पार्टिसिपेंट्स एंड इन्फॉर्मेंट्स। और सेकेंडली जो हो जाता है क्वांटिटेटिव में जो होता है दैट इज कॉल्ड एज रिस्पोंडेंट्स। यहाँ पे हम पर्पसिव और थ्योरेटिकल सैंपलिंग करते हैं कि हमारा कोई एक विशेष उद्देश्य होता है, उसके साथ में हम पर्पसिव और थ्योरेटिकल सैंपलिंग करते हैं। क्वांटिटेटिव रिसर्च में हम रैंडमाइज सैंपलिंग करते हैं बिकॉज कि वहां पे हमको बायसनेस को कम करना होता है। और यहाँ पे भी बायसनेस को कम करने के तरीके होते हैं जहां पे कि मैंने कहा कि एक ही सवाल को आप 4 तरीके से पूछ सकते हैं। सो दैट इज अ डिफरेंस बिटवीन दीज टू। फिर उसके बाद फ्लेक्सिबल सैंपलिंग होती है, लेकिन यहाँ पे जब हम क्वांटिटेटिव की बात करते हैं तो सैंपल का साइज जो है वो हम इनिशियली फिक्स कर देते हैं। कहीं भी आपको मौका मिल जाता है क्वालिटेटिव रिसर्च में आप अपना क्वेश्चनर रेज कर सकते हैं बिकॉज कि हमने कहा कि देयर आर सो मेनी मेथड्स ऑफ क्वालिटेटिव रिसर्च जिसमें डिस्कोर्स भी है, इंटरव्यूज भी है, रीडिंग भी है। तो वहां पे कोई फिक्स सैंपल साइज नहीं, बट यहाँ आप अपना सैंपल साइज फिक्स कर सकते हैं। डेटा कलेक्शन जो होता है दैट इज ऑल टुगेदर डिफरेंट इन बोथ द मेथड्स। पहली वाली जो है जो कि हमारा क्वालिटेटिव है उसके अंदर इन डेप्थ नॉन स्टैंडर्डाइज्ड इंटरव्यूज की आप किसी तरीके का स्टैंडर्डाइजेशन ऑफ द आपका क्वेश्चनर नहीं देते। आप एक क्वेश्चनर डिजाइन करते हैं और उसके हिसाब से फिर आप उसको स्टैंडर्डाइज इंटरव्यू की तरह काम करते हैं। बट यहाँ पे जब हम क्वांटिटेटिव करते हैं तो यू हैव गॉट स्टैंडर्डाइज इंटरव्यू। सपोज कि अगर आज मैं ये बात कहूँ कि देयर इफ वी गेट अ चांस कि किसी पॉपुलेशन ग्रुप में या किसी एक समूह के अंदर जो है वो एंजाइटी लेवल कैसा है, तो व्हेन यू आर डूइंग अ क्वालिटेटिव रिसर्च तो आप एंजाइटी लेवल के लिए अपना क्वेश्चनर डिजाइन करते हैं, उसको स्टैंडर्डाइज नहीं करते। बट जहाँ पे हम क्वांटिटेटिव रिसर्च की बात करते हैं तो जो अवेलेबल हमारे पास स्टैंडर्डाइज क्वेश्चनर्स हैं हम उसको यूज करते हैं। फिर उसके बाद पार्टिसिपेंट ऑब्जर्वेशन या फील्ड वर्क के साथ में जाता है। डॉक्यूमेंट्स, फोटोग्राफ्स और वीडियोस जो हैं वो आपके क्वालिटेटिव रिसर्च के अंदर एक बड़ा डेटा सोर्स होते हैं। जबकि क्वांटिटेटिव रिसर्च में हम टाइटली स्ट्रक्चर्ड ऑब्जर्वेशन की हमारी जितने भी ऑब्जर्वेशन होती है वो टाइटली स्ट्रक्चर्ड ऑब्जर्वेशन होती है कि हम हमारे पास एक पहले से डिसाइडेड होता है कि हम इस तरीके से करेंगे, स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस आपके पास डिसाइडेड होता है, तो उस चीज को आप करते हैं। उसके बाद जो अगला पार्ट आता है किसी भी रिसर्च का डेटा कलेक्शन के बाद दैट इज कॉल्ड एज एनालिसिस। तो एनालिसिस जो होता है दैट इज ऑलवेज थीमेटिक, कांस्टेंट एंड कंपैरेटिव एनालिसिस होता है। कांस्टेंट कंपैरेटिव लगातार आप उसका कंपैरिजन कर सकते हैं। कंटेंट एनालिसिस एक पार्ट होता है। ग्राउंडेड थ्योरी, इथनोग्राफिक एनालिसिस। कंटेंट एनालिसिस, ग्राउंडेड थ्योरी, इथनोग्राफिक एनालिसिस की हम पार्ट 2 में लेक्चर के दूसरे वाले हिस्से में हम बात करेंगे कि इन सारी चीजों के बारे में हम बाद में बात करेंगे। स्टैटिस्टिकल एनालिसिस आप क्वांटिटेटिव में अंदर करते हैं, दैट मींस normally your quantitative data are presented in the form of either way increase or decrease or in terms of percentage. But when you do the quantitative research तो आप different तरीके के statistical analysis use करते हैं जिसमें का स्क्वायर भी हो सकता है, mean, mode, median, standard deviation, standard error, उसके बाद में t test, z test, chi square, whatever is the test available and whatever suits to your study आप उसको इस्तेमाल करते हैं। Normally जब हम बात करते हैं क्वालिटेटिव रिसर्च की तो दैट इज अ स्टोरी काइंड ऑफ थिंग कि आप कहते हैं कि मेरी रिसर्च से इस तरीके की चीजें निकली, दैट इज अ काइंड ऑफ हाइपोथेसिस सॉर्ट ऑफ थिंग। फिर उसके बाद में इथनोग्राफिकल और लेकिन जब हम दूसरी तरफ बात करते हैं क्वांटिटेटिव में तो यू गेट द मेजरेबल रिजल्ट्स कि आपके रिजल्ट जो होते हैं वो सांख्यिकीय रूप से या गणितीय रूप से दर्शाए जाते हैं जिसके आधार पर कि आप कहते हैं कि भाई ये हमारे जो रिजल्ट हैं वो इस तरीके के हैं। Then if you look for the relationship so between the researcher and the participant, so there is a direct involvement of the researcher in the qualitative aspect और research relationship close हो जाती है उसके अंदर। बट अगर हम क्वांटिटेटिव की बात करें तो देयर इज अ लिमिटेड इन्वॉल्वमेंट ऑफ द रिसर्चर्स और रिलेशनशिप जो होती है वो डिस्टेंट रिलेशनशिप डिस्टेंट।
उसके बाद क्वालिटेटिव रिसर्च जो है वो ट्रस्टवर्दीनेस पे डिपेंड करती है, ऑथेंटिसिटी टिपिकली एंड ट्रांसफरेबिलिटी। ट्रांसफरेबिलिटी मतलब एक जगह का आपने डेटा कलेक्ट किया तो वो दूसरी जगह पे एप्लीकेबल है या नहीं है, उस सारी। इंटरनल और जहां क्वांटिटेटिव की हम बात करते हैं तो वो इंटरनल वैलिडिटी होती है, एक्सटर्नल वैलिडिटी होती है, रिलायबिलिटी होती है और जनरलाइजेबिलिटी होती है कि उसको हम जनरलाइज कर सकते हैं कि एन मास पॉपुलेशन पे हम उसको यूज कर सकते हैं या नहीं कर सकते। एक बहुत छोटा सिंपल सा एग्जांपल देता हूँ इस जनरलाइजेशन का या ट्रांसफरेबिलिटी का। इवन एक पर्टिकुलर ड्रग होती है जिसको कि हम कहते हैं पैरासिटामोल। बेसिकली दिस ड्रग इज कॉल्ड एज एंटीपायरेटिक ड्रग। अब ये दवा जो है या ये बुखार उतारने की दवा थ्रू आउट दी वर्ल्ड दी जाती है, तो दैट इज कॉल्ड अ जनरलाइजेशन। लेकिन ये कहाँ से आया? जब पहली बार इसको खोजा गया क्वालिटेटिव एस्पेक्ट में, तो उन्होंने कहा कि इस चीज को है, इसको इस पे करके देखो, दूसरे ग्रुप पे करके देखो, वेदर इट इज परफॉर्मिंग द और इट इज प्रोड्यूसिंग द सेम काइंड ऑफ रिजल्ट्स, तो वो वहां पे उस तरीके की चीज आती है। तो वो जनरल जब वो ट्रांसफरेबिलिटी सबके ऊपर एप्लीकेबल हो जाए तो वो जनरल हो जाती है, या उसके रिजल्ट जो है वो जनरलाइज हो जाते हैं, उसके साथ में हम बात करते हैं। अगर हम बात करें तो क्वालिटेटिव रिसर्च जो है उसके बेसिक जो हमारे पास कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है, तो द प्राइमेसी ऑफ डेटा। प्राइमेसी ऑफ डेटा से हमारा मतलब है कि थ्योरेटिकल फ्रेमवर्क जो है, जो कि प्री डिटरमाइन नहीं किया गया बट ड्राइव्स डायरेक्टली फ्रॉम द डेटा, कि हमारे डेटा से डायरेक्टली वो आता है कि हमने पहले कुछ भी डिटरमाइन किया। नॉर्मली जब हम क्वांटिटेटिव रिसर्च करते हैं तो हम पहले हम डिटरमाइन कर लेते हैं, लाइक आप डिटरमाइन कर लेते हैं कि हमारी हाइपोथेसिस जो है वो रिजेक्ट करेंगे या हम इस लेवल पे रिजेक्ट करेंगे पी वैल्यू पे, उसके साथ। सेकेंडली, द क्वालिटेटिव रिसर्च इज ऑलवेज कॉन्टेक्सचुअल, जो कि कॉन्टेक्स्ट बाउंड होती है, किसी एक पर्टिकुलर एस्पेक्ट को लेके होती है, और रिसर्च जो है वो कॉन्टेक्स्ट सेंसिटिव होता है कि उस रिसर्च को उस कॉन्टेक्स्ट के बारे में थोड़ी सी जानकारी रहती है। इमर्शन इन द सेटिंग्स मतलब कि जो भी रिसर्चर्स जो है या जो भी उस रिसर्च को कर रहा है वो अपने आप को उस पूरे प्रोसेस में इन्वॉल्व कर लेते हैं, उनकी फीलिंग्स के साथ में, या जिनसे इंटरव्यू कर रहे हैं उनकी फीलिंग्स के साथ में, या उनके थॉट्स के साथ में जो है जिनको एक्सप्लोर कर रहे हैं, तो वो साथ में। चौथा एस्पेक्ट जो होता है दैट इज इमिक पर्सपेक्टिव। तो इमिक पर्सपेक्टिव जो होता है वो व्यूज ऑफ द पीपल जो कि रिसर्च में इन्वॉल्व है। दैट मीन्स कौन इन्वॉल्व हो सकता है, या तो पार्टिसिपेंट्स हो सकते हैं या मीनिंग एंड इंटरप्रिटेशन उन सबके साथ में इन्वॉल्व सकते। देयर आफ्टर थिक डिस्क्रिप्शन, जो कि अगर हम बात करें तो इसमें हम जब बात करते हैं तो वी डिस्क्राइब अ लॉट, वी डोंट प्ले विद द नंबर्स। उस डिस्क्राइब में करेंगे तो हम लोकेशन के बारे में बात करेंगे, उनके विजुअल सेटिंग के बारे में बात करेंगे, इवेंट्स के बारे में बात करेंगे, वर्बटिम में अर्थात किस तरीके से उन्होंने बात की उसके बारे में बात करेंगे, तो वो सारी चीजें। फिर उसके बाद में रिसर्च रिलेशनशिप, वो जो है वो इक्वलिटी की पोजीशन पे। ऐसा नहीं होता है यहाँ पे कि जहां मैंने आपको कहा कि वो उसी का पार्ट हो जाता है, रिसर्च का पार्ट हो जाता है। इमर्शन इन द सेटिंग्स में जब हमने कहा कि रिसर्चर जो है वो नेचुरल सेटिंग्स ऑफ द पीपल जो भी वहां पे है उनके साथ में हो जाता है, तो उसका जब पार्ट हो जाता है तो वहां पे किसी तरीके का भेदभाव नहीं है। अगर इमर्शन ऑफ सेटिंग्स की अगर हम बात करें कि सपोज अगर हम आप किसी गांव वाले एक ग्रुप को इंटरव्यू कर रहे हैं फॉर सम पर्टिकुलर एस्पेक्ट ऑफ द साइंस, उनकी समझ के बारे में अगर हम इंटरव्यू कर रहे हैं, तो जो व्यक्ति जिस एरिया का है वो उस एरिया की भाषा में बात करना शुरू करता है, तो दैट इज कॉल्ड एज इमर्शन इन द सेटिंग्स, कि वो उनको समझाने के लिए आप हिंदी या अंग्रेजी में बात करना शुरू करें या जो भाषा उनको समझ में नहीं आती उससे बात करना शुरू करेंगे, तो दैट इज दैट पार्ट जो उसके साथ में नहीं आती। लेकिन जब आप इक्वलिटी में बात करते हैं, उनकी ही भाषा में बात करेंगे, तो दो रिसर्च रिलेशनशिप हो जाती है। एंड देयर आफ्टर द ट्रायंगुलेशन, जिसमें बहुत सारे मेथड्स है जिसके बारे में हम जानेंगे कि बहुत सारे मेथड्स है जिसमें कि डेटा कलेक्शन के हैं, इन्वेस्टिगेटर्स के हैं, जिसके अंदर की हम इस चीज को ले सकते हैं। एम्स जो है हमारे क्वालिटेटिव रिसर्च के जो है रिसर्चर्स के जो है, पहला जो होता है वो बिहेवियर को एक्सप्लोर करना। जैसे मैंने कहा कि बहुत सारी स्टडीज ऐसी होती है जिसमें कि एंगर है, एंग्जाइटी है, डिप्रेशन है, या किसी और तरीके की चीज है विच इज और लाइकिंग और डिसलाइकिंग फॉर समथिंग, वो अगर इसके साथ में जुड़ी हुई तो है। वी देयर डिफरेंट पर्सपेक्टिव्स अबाउट वन पर्टिकुलर थिंग, कि किसी एक पर्टिकुलर चीज के लिए वो का पर्सपेक्टिव क्या है, वो किस तरीके से सोचते हैं,
किस तरीके की उनकी फीलिंग्स है, किस तरीके के एक्सपीरियंसेस हैं, तो वो उनके जीवन में क्या महत्ता रखते हैं, तो वो क्वालिटेटिव रिसर्च के अंदर आता है। अनदर इज इथनोग्राफी, जो कि उसके साथ में कल्चर और कस्टम्स के साथ में जुड़ी हुई होती है। यू मे फाइंड द डिफरेंसेस इन द कस्टम्स एंड कल्चर्स, especially the people those who are working in the area of sociobiology, उनके लिए इथनोग्राफी जो है वो बड़ी काम में आती है। thereafter we have the grounded theories, तो सोशल प्रोसेस और इंटरेक्शन के बारे में बात करते हैं। फिनोमिनोलॉजिस्ट जो है, जहाँ पे फिनोमिनन के बारे में बात करते हैं, उनके एक्सपीरियंस के बात करते हैं, जो कि दुनिया को डिस्क्राइब करते हैं, उन चीजों के बारे में बात करते हैं। बट जब भी हम क्वालिटेटिव रिसर्च की बात करते हैं तो हमको फ्लेक्सिबल होना पड़ता है, हमको अपना दिमाग खुला रखना पड़ता है, बिकॉज वी हैव टू बी ओपन टू एक्सेप्ट एनी काइंड ऑफ एनी वियर्ड आंसर। तो वो सारी चीज है, उसके लिए हमको फ्लेक्सिबल होना पड़ता है। जबकि हम क्वांटिटेटिव रिसर्च की बात करते हैं तो हम थोड़े से रिजिड हो जाते हैं, हम बहुत सारी चीजों को नहीं करते। जब हम क्वांटिटेटिव रिसर्च की बात करते हैं तो हमारे पास दो शब्द आते हैं, जिसके एक पर्टिकुलर शब्द आता है विच इज कॉल्ड एज आउटलायर। आउटलायर इज समथिंग जो कि आपकी मीन वैल्यू से बहुत ज्यादा डेविएट कर रहा है, या तो पॉजिटिवली या नेगेटिवली। बहुत ज्यादा डेविएट जब करता है तो दैट इज कॉल्ड एज एन आउटलायर। बट वहां पे हम उस आउटलायर को कंसीडर नहीं करते। बट जब यहाँ पे हम बात करते हैं, जब क्वालिटेटिव रिसर्च की हम बात करते हैं, तो हम उन आउटलायर्स को भी कंसीडर करते हैं। तो वो सारी चीज जो है उनको हम एप्लीकेबल करते हैं। फिर उसके बाद में हमारी बायसनेस नहीं होनी चाहिए क्वालिटेटिव रिसर्च के साथ में। बायसनेस का अगर बहुत सीधी सी बात कहूं तो आधा सच, नॉट द कंप्लीट ट्रूथ। किसी भी चीज के बारे में अगर हम बताएं तो उसके आधे सच के बारे में बताते हैं, तो दैट इज कॉल्ड एज बायसनेस। तो आधा सच जो है वो नहीं आनी चाहिए। वो चीजें जो है वो उस क्वालिटेटिव रिसर्च का पार्ट नहीं होना चाहिए। इनफैक्ट बायसनेस को हटाने के लिए हमारे पास, चूंकि यहाँ पे स्टैटिस्टिकल मेथड नहीं है, क्योंकि जब हम क्वांटिटेटिव रिसर्च की बात करते हैं तो वहां हमारे पास क्वांटिटेटिव रिसर्च में स्टैटिस्टिकल मेथड्स होते हैं जो कि इस बायसनेस को रिमूव करते हैं। बट यहाँ नहीं होते, तो इट अगेन डिपेंड्स ऑन द रिसर्चर एंड द पार्टिसिपेंट। यहाँ पे एक छोटा सा एग्जांपल और लेना चाहूंगा। आई हरिडली गो थ्रू दिस, कि एक पहाड़ के बारे में या एक झील के बारे में या एक बिल्डिंग के बारे में कोई व्यक्ति देख रहा है, और वो एक पर्टिकुलर जगह पे देखता हुआ उस बिल्डिंग को डिस्क्राइब करता है। बट वो जब वो डिस्क्राइब करता है एक पर्टिकुलर जगह पे देखते हुए, एक पर्टिकुलर जगह पे खड़े होके और एक पर्टिकुलर हिस्से को देखते हुए जब वो डिस्क्राइब करता है, तो वो उसके बारे में सारी चीजें नहीं बता पाता। और जब वो सारी चीजें नहीं बता पाता तो वो जो होगी वो उसकी एक बायसनेस होगी। तो उस बायसनेस को हटाने के लिए हम क्या करें? तो उस बायसनेस को हटाने के लिए हम क्या कर सकते हैं कि डिफरेंट जगह पे, उस बिल्डिंग के चारों तरफ, उस पहाड़ के चारों तरफ, उस झील के चारों तरफ, उस नदी के चारों तरफ, या किसी एक एस्पेक्ट के डिफरेंट चीजों को देखने के लिए हम डिफरेंट लोगों को एम्प्लॉय कर सकते हैं कि भाई वो सारी चीजें जो है वो क्या। बट स्टिल अभी भी बहुत सारी बायसनेस उसके अंदर रह जाती है। कैसे रह जाती है कि आप टाइम किस समय पे आपने देखा, किस एंगल से देखा, तो ये सारी चीजें उसके साथ में आती। तो इन रिड्यूसिंग जितनी भी बायसनेस हमारे साथ में आई, तो उन सारी चीजों को कम करने के लिए, उस बायसनेस को कम करने के लिए, दैट इज कॉल्ड एज ट्रायंगुलेशन। और वो ट्रायंगुलेशन जो है वो क्वालिटेटिव स्टडीज का एक पार्ट है, जिसके अंदर की पॉपुलेशन इंस्टेड ऑफ माउंटेन्स की अलग अलग लोग क्या देख रहे हैं, कि हम उसके बारे में ऑब्जर्वर के बारे में बात करेंगे, ना कि ऑब्जेक्ट के बारे में बात करेंगे। तो वो ट्रायंगुलेशन स्टडीज जो है वो बायसनेस को कम करने के लिए काम में आती है। तो ट्रायंगुलेशन जो है वो टीम मेंबर की जो बायसनेस होती है उसको कम करने के काम में आता है। कंटिन्यूअसली क्रॉस चेक करता है किसी भी चीज को। एंड ऑफ द, और आपका जो बायस ने जो डेटा है वो उसके जो ट्रायंगुलेशन को जो चेक करने के लिए होता है, दैट इज डेटा, इन्वेस्टिगेटर्स, मेथड्स एंड इंफॉर्मेशन। 4 लेवल उस ट्रायंगुलेशन के होते हैं। और इन 4 के आधार पे, जैसे मैंने कहा कि हम ऑब्जेक्ट को छोड़ते हैं, बल्कि हम उसके बाद में हम ऑब्जर्वर की बात करते हैं कि वो ऑब्जर्वर जो है उस चीज को देखता है। वी हैव डिफरेंट ट्रायंगुलेशन की हम बात करें तो वी हैव 4 डिफरेंट ट्रायंगुलेशन, जिसके अंदर की हमने कहा था। सो डेटा ट्रायंगुलेशन होता है। डेटा ट्रायंगुलेशन के अंदर अगर हम बात करें तो फॉर्म डिफरेंट ग्रुप्स होता है, डिफरेंट लोकेशंस होता है, डिफरेंट आइटम्स के लिए होता है। इन्वेस्टिगेटर ट्रायंगुलेशन जो होता है दैट इज मल्टीडिसिप्लिनरी हो सकता है, जेंडर
जेंडर बेस्ड हो सकता है, इनसाइडर आउटसाइडर, इनसाइडर वन हु इज द पार्ट ऑफ द रिसर्च एंड वन हु इज आउटसाइड द रिसर्च, उसके साथ में बात हो सकती है। मेथडोलॉजिकल ट्रायंगुलेशन की बात करें तो विद इन द मेथड, इंट्रा मेथड और बिटवीन द मेथड, अक्रॉस द मेथड जो है वो दोनों चीजें हो सकती है। टाइप ऑफ इन्फॉर्मेंट्स अगर हम उसके अंदर बात करें तो मैन वुमेन है, यंग ओल्ड है, तो दैट मींस यू हैव द डिफरेंट ग्रुप्स, तो वो जो सारी चीजें हैं वो उसके साथ में आती है, तो वो उन चीजों की बात करते हैं, तो वो ट्रायंगुलेशन के अंदर आपको मदद करते हैं या आपकी बायसनेस को कम करने में मदद करते हैं। फिर उसके बाद में एक जो इम्पोर्टेंट चीज आती है कि दैट इज आपका डेटा जो है वो कितना ट्रस्टवर्दी है, कि आप जो जितनी बात कर रहे हैं वो आपका डेटा कितना भरोसे के लायक है। तो जो भरोसा जो है वो भरोसा डेटा जो है वो किस तरीके से लाया जाए, तो सेवरल क्राइटेरिया जो है उनके लिए जो है वो एस्टेब्लिश किए गए हैं ट्रस्टवर्दीनेस के। कौन कौन से क्राइटेरिया एस्टेब्लिश किए गए हैं अगर हम बात करें, देयर आर 4 डिफरेंट क्राइटेरिया जिसके अंदर की हम बात करें। जो होते हैं दैट इज ट्रुथ वैल्यू। उसके अंदर क्या है कि आपने जो भी मेजर किया कि ट्रस्टवर्दीनेस के लिए उसमें कितना सत्य है। एक्सेप्टेबिलिटी, वो कितना एक्सेप्टेबल है, वो कितना कंसिस्टेंट है और कितना न्यूट्रल है। तो अगर हम दोनों तरफ बात करें तो क्रेडिबिलिटी, बेसिकली ये डिपेंड करता है क्रेडिबिलिटी ऑफ द रिस्पोंडेंट्स, कि वो कितने क्रेडिबल है रिस्पोंडेंट्स। जबकि क्वांटिटेटिव में बात करते हैं तो वहाँ इंटरनल वैलिडिटी होती है, बिकॉज की स्टैटिस्टिकल टेस्ट जो है वो आपको उसी तरीके से कह सकते हैं। एक्सेप्टेबिलिटी की बात करूं तो आपका डेटा जो है वो दूसरे सब्जेक्ट्स पे या दूसरा एस्पेक्ट पे कितना लागू हो सकता है, तो वो एक्सेप्टेबिलिटी में आता है। दैट इज ट्रांसफरेबिलिटी और इंटरनल वैलिडिटी, एक्सटर्नल वैलिडिटी, कि वो ट्रांसफर किया जा सकता है दूसरे ग्रुप पे या नहीं किया जा सकता। कंसिस्टेंसी, कि अगर आप उसी डेटा को बार बार या उसी एक्सपेरिमेंट को या उसी सर्वे को बार बार करते हैं तो वो आपके डेटा के रिजल्ट सेम आते हैं या आपकी स्टडी के रिजल्ट सेम आते हैं, तो दैट इज कंसिस्टेंसी। तो आपके पास डिपेंडेबल सोर्सेज होने चाहिए, जबकि क्वांटिटी में इसको हम बात करें तो दे आर कॉल्ड एज रिलायबिलिटी। न्यूट्रल जो है कंफर्मेबिलिटी और ऑब्जेक्टिविटी के साथ में ट्राई करते हैं, जैसा मैंने शुरू में कहा था कि जहां पे कि हम क्वालिटेटिव डेटा की बात करते हैं वो सब्जेक्टिव चलता है, ऑब्जेक्टिव नहीं चलता। क्रेडिबिलिटी की अगर हम बात कर रहे हैं तो हमने कहा कि क्रेडिबिलिटी ऑफ द स्टडी जो है वो किसके साथ में बढ़ा सकते हैं। पहली चीज जो होती है प्रोलॉन्ग एंगेजमेंट, की अगर हम एक लंबे समय तक उस स्टडी को करें, क्योंकि जितने भी क्वालिटेटिव स्टडीज होती है दे आर नॉट शॉर्ट टर्म, दे आर लॉन्ग टर्म स्टडीज, तो उसके साथ में बात करते हैं। फिर उसके बाद परसिस्टेंट ऑब्जर्वेशंस की बात करते हैं कि अगर हम लगातार किसी एक पर्टिकुलर एस्पेक्ट को लेके लगातार ऑब्जर्वेशन करते जाते हैं तो दैट इज कॉल्ड एज परसिस्टेंट ऑब्जर्वेशन, और वो परसिस्टेंट ऑब्जर्वेशन जो है वो हमारे उसके साथ में चलते हैं। ट्रायंगुलेशन, जैसा मैंने कहा कि वो होता है। अब जैसे ट्रायंगुलेशन को कम करने के लिए मैंने कहा कि या बायसनेस को कम करने, नॉट ट्रायंगुलेशन, बायसनेस को कम करने के लिए ट्रायंगुलेशन होता है। तो हम अलग अलग तरीके के क्वेश्चन पूछते हैं, हम डिफरेंट सोर्सेज देखते हैं और डिफरेंट मेथड्स को यूज करते हैं। डिफरेंट क्वेश्चंस की अगर मैं बात करूं तो हाउ वी डू इट, कि डिफरेंट क्वेश्चंस की बात करूं तो एक पर्टिकुलर क्वेश्चन अगर हम किसी की एज के बारे में पूछ रहे हैं तो उस एज के बारे में क्वेश्चंस के लिए हम उसके क्रॉस एग्जामिन कर सकते हैं उस क्वेश्चन को। सपोज किसी व्यक्ति की उम्र 50 साल है तो हम उससे पूछ सकते हैं कि आपकी उम्र 50 साल है, तो अगले से पूछ सकते हैं कि आपका विवाह कब हुआ था, आपके विवाह को कितने वर्ष हो गए, आपने 10वीं की कक्षा कब पास की थी, आपने 12th कब पास की, आप कितने साल 12th पास की हो गए। तो दीज काइंड ऑफ क्वेश्चंस इफ यू आस्क, तो वो क्रॉस एग्जामिनेशन की श्रेणी में आते हैं, जिससे कि उसका जो पहला आंसर है कि व्हाट इज योर एज, उसको वो वेरीफाई करते हैं। तो इस तरीके से डिफरेंट सोर्सेज, कि अगर किसी व्यक्ति के बारे में हम कुछ जानना चाह रहे हैं या किसी एस्पेक्ट के बारे में जानना चाह रहे हैं तो हम डिफरेंट सोर्सेज यूज कर सकते हैं। सपोज इफ वी आर आस्किंग और इफ वी आर टॉकिंग विद वन पर्सन, तो उसकी कोई भी क्लोज जो है उससे उसके बारे में जब हम उससे पूछते हैं दैट इज अनदर सोर्स जिसके बारे में हम पूछ सकते हैं। तो इस तरीके की चीजें। फिर देयर इज अनदर पार्ट व्हिच इज कॉल्ड एज पीयर डीब्रीफिंग। पीयर डीब्रीफिंग जो है वो सिमिलर स्टेटस ऑफ द कलीग्स के साथ में किया जाता है, कि अगर आप कोई भी एक पीयर ग्रुप बनाते हैं उसके अंदर अगर इंटरव्यू वाले सारे जने जो हैं वो सारे एक ही तबके के लोग होने चाहिए। दैट मीन्स कि उनका सबका स्टेटस सेम होना चाहिए। नथिंग लाइक टीचर एंड स्टूडेंट और द बॉस और द सबऑर्डिनेट, इस तरीके की चीजें पीयर डिब्रीफिंग के लिए नहीं होती। ऑल द सबऑर्डिनेट्स या ऑल द बॉसेस, ऑल द टीचर्स, ऑल द स्टूडेंट्स, तब वो पीयर डिब्रीफिंग होती है। और उसके बाद सपोज इफ यू आर कंडक्टिंग ए सर्वे, और जब आप सर्वे कंडक्ट कर रहे हैं तो सर्वे कंडक्ट करने के लिए इफ यू हैव हायर्ड सम पीपल,
तो वो जो लोग आपने हायर किए वो सब एक ही श्रेणी के होने चाहिए, तो वहां पे पीयर रिव्यू काम करेगी, अदरवाइज नहीं काम करेगी। समटाइम्स वी डू द नेगेटिव केस एनालिसिस ऑल्सो, कि हम कई बार जो है नेगेटिव रिजल्ट्स के लिए या नेगेटिव केस एनालिसिस करते हैं जो कि कॉन्शियस रिसर्च होती है, जो कि आपकी करंट वर्किंग हाइपोथेसिस के साथ में नहीं बैठती, या आज की तारीख में जो किसी चीज के लिए एक हाइपोथेसिस दे रखी है और आप उससे वेरी करते हैं, तो वो उसके लिए आप जब या उसका बिल्कुल उलट सोचते हैं, तो उसके लिए आप जो चीज करते हैं दैट इज कॉल्ड एज नेगेटिव केस एनालिसिस। मेंबर चेक करते हैं आप, उसके अंदर ट्रांसक्रिप्ट होती है, प्राइमरी रिपोर्ट होती है, तो बहुत सारी चीजें इसके साथ में शामिल है। एप्लीकेबिलिटी या ट्रांसफरेबिलिटी, जैसा मैंने कहा कि थिक डिस्क्रिप्शन होता है उसके अंदर, और पर्पसिव सैंपलिंग करते हैं, जबकि हमने कहा कि जैसा कि उसके अंदर रैंडम सैंपलिंग करते हैं, बट यहाँ पर्पसफुल सैंपलिंग करते हैं कि स्कूल के बच्चों पे स्टडी कर रहे हैं तो आप एक पर्टिकुलर एज ग्रुप को ही सेलेक्ट करेंगे। अगर आप कहीं और दूसरी तरीके की स्टडी कर रहे हैं, इफ यू आर स्टडिंग समथिंग रिलेटेड विद द सेक्स ऑफ द इंडिविजुअल, तो आप उसमें सैंपलिंग उसी तरीके की करेंगे, तो यहाँ पर्पसफुल सैंपलिंग होती है। जबकि क्वांटिटेटिव रिसर्च में जो होती है वो हमारे पास रैंडम सैंपलिंग। आप यहाँ पे जब रिजल्ट्स को इंटरप्रेट करते हैं तो आप बड़ा बड़ा डिस्क्रिप्शन देते हैं कि इस तरीके से यू राइट ईच एंड एवरीथिंग, बट व्हेन यू राइट क्वांटिटेटिव थिंग यू राइट द मीन वैल्यू, एसजी एंड द सिग्निफिकेंट वैल्यू, तो वो वहां पे आपका डिस्क्रिप्शन जो होता है दैट इज वेरी प्रिसाइज। लेकिन यहाँ पे जो हो जाता है वो थिक डिस्क्रिप्शन। कंसिस्टेंसी और डिपेंडेबिलिटी, की आपका रिजल्ट जो है वो कितने कंसिस्टेंट है, कितने डिपेंडेबल है, कि अगर वो कोई दूसरा दोहराना चाहे, किसी और पीयर ग्रुप में करना चाहे हम, तो वो कंसिस्टेंट है या नहीं है, इनकी हम बात कर चुके हैं। आपके रिजल्ट जो है वो न्यूट्रल है या कंफर्मेड, दूसरी जने कंफर्म कर सकते हैं। तो दिस इज अगेन जो क्वांटिटेटिव और क्वालिटेटिव का एस्पेक्ट है, कि जिसमें न्यूट्रल भी हो सकता है और कंफर्म दूसरी ग्रुप में भी हम कंफर्म कर सकते हैं, तो ये हो सकता है। समटाइम्स व्हेन यू स्पेसिफिकली जो साइंस के स्टूडेंट है, मैं बायोलॉजी के कुछ एग्जांपल्स दे सकता हूँ कि देयर वी फाइंड कि सम रिजल्ट्स आर नॉट मैचिंग विद अस, क्योंकि अभी मैं कुछ एक स्टडी पढ़ रहा था, तो इंसिडेंस ऑफ सम गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल पैरासाइट्स इन द ruminants, तो किसी ने रेनी सीजन में बताया, किसी ने विंटर में बताया, किसी ने समर्स में बताया कि उनकी जो है इंसिडेंस, चांसेस ऑफ इंसिडेंस जो है वो अलग अलग है। लेकिन ये जो है वो कंफर्म कैसे किए जा सकते हैं, वो कंफर्म करने के लिए हमको उसी तरीके के सेटअप में जब दोबारा काम करते हैं तो वो सारी चीजें। कई बार ये हमको कहा जाता है कि बेटा इफ यू आर डूइंग समथिंग विच इज क्वांटिटेटिव इज नॉट पब्लिकेबल और यू कैन नॉट पब्लिश दैट। तो देर इज वन एग्जाम्पल जहाँ पे कि एक एग्जाम्पल है कि अच्छी जगह पब्लिश हुआ, एंटीनल फिजिकल एक्टिविटी, क्वांटिटेटिव क्वालिटेटिव स्टडी एक्सप्लोरिंग द वुमेन्स एक्सपीरियंस एंड एक्सेप्टेबिलिटी ऑफ एंटीनल वॉकिंग ग्रुप्स, एंटीनेटल वॉकिंग ग्रुप्स। तो ये चीज जो है वो पब्लिश हुई है एक अच्छे जर्नल में, दैट इज बीएमसी विच इज अ पार्ट ऑफ द स्प्रिंजर, उसके अंदर पब्लिश हुई। तो वहां पे अगर हम देखते हैं तो इस तरीके की चीज जब पब्लिश होती है, यू कैन पब्लिश द क्वालिटेटिव रिजल्ट्स और क्वालिटेटिव स्टडीज आल्सो। दिस इज द पार्ट ऑफ एंड ऑफ पार्ट वन। अगर अब मैं यहाँ पे बात करूं कि हाउ इट इज एप्लीकेबल टू ऑल ऑफ द स्टूडेंट्स दोज हु आर हियर, किस तरीके से एप्लीकेबल है, अगर हम बात करें, लेट मी कम टू माय दिस थिंग, कि किस तरीके से एप्लीकेबल हो सकता है आपके साथ में या मेरे साथ में। स्पेशली फॉर द बायोलॉजिकल साइंस स्टूडेंट्स आई कैन रिप्लाई वेरी वेल, बट फिजिकल साइंसेज और केमिकल साइंसेज के साथ में हो सकता है कि मुझे थोड़ी सी समस्या हो, बिकॉज कि आई एम नॉट अ स्टूडेंट ऑफ फिजिकल साइंसेज। बट जब मैं पढ़ रहा था तो फिजिक्स और केमिस्ट्री में भी आज की तारीख में क्वालिटेटिव रिसर्च की बात करनी शुरू कर दी है। स्पेशली जब किसी एक पर्टिकुलर फिनोमिनन के बारे में बात की जाती है फिजिक्स में, तो now the people started taking the opinion of the people about one particular physical phenomenon, और उस फिजिकल फिनोमिनन के बारे में जब लोगों की ओपिनियन ली जाती है और उसके बारे में जब वो बात कर रहे हैं, तो उस चीज को जब देखते हैं तो उसके जो रिजल्ट्स आ रहे हैं उसको भी वो लोग पब्लिश कर रहे हैं। सेम विद द केमिस्ट्री, द थिंग्स कैन बी अप्लाइड, कि कुछ तरीके की इस तरीके की चीजें जो है वो अप्लाई की जा सकती है, लाइक फॉर सम यूज ऑफ एसिड्स या किसी और तरीके के केमिकल्स के यूज के बारे में जब इस तरीके की चीजें की है तो वो अप्लाई की जा सकती है। बट मोस्ट ऑफ द टाइम इस तरीके की चीजें जो है, या सर्वे वाला पार्ट है, या
ऑब्जर्वेशनल स्टडीज जो है, दैट इज मोस्ट ऑफ द डन बाय द पीपल दोज हु आर ईदर वे फ्रॉम द ह्यूमैनिटीज और बायोलॉजिकल साइंसेस के जो लोग इस पर्टिकुलर एरिया को डील करते हैं, वो है जो कि इथनो स्टडीज करते हैं। इथनो स्टडीज का मतलब हुआ मेरा कि जो इथनोजोलॉजी कर रहे हैं या इथनो फार्माकोलॉजी कर रहे हैं या इथनो बॉटनी कर रहे हैं, वो लोग इस तरीके की चीजें ज्यादा करना पसंद करते हैं या उनके डोमेन का पार्ट होता है, बिकॉज कि वहां पे इस तरीके की क्वांटिटेटिव रिसर्च की उम्मीद आपसे नहीं की जाती। लेकिन फिर भी कुछ स्टडीज जो है साइंस में रिलेटेड विद द एजुकेशन, उन स्टडीज को आज की तारीख में भी किया जा रहा है, इन स्टडीज को लोग कर रहे हैं। सो यहाँ जब हम क्वांटिटी और क्वालिटी की बात कर रहे थे, तो किसी को कोई प्रश्न है, कोई प्रश्न पूछना चाहे, बिकॉज कि नेक्स्ट पार्ट में जब हम बात करेंगे तो विल टॉक अबाउट ओनली द फीचर्स ऑफ द क्वालिटेटिव स्टडीज, जहाँ पे कि हम फिनोमिनोलॉजी की बात करेंगे, हम मिथनोग्राफी की बात करेंगे, या पीयर ग्रुप की बात करेंगे, या किसी और चीज की बात करेंगे। यहाँ पे किसी को कोई प्रश्न है तो yes sir, I have a doubt sir. सर Right. जैसा आपने समझाया कि क्वांटिटेटिव है हमारा स्टडी, तो कंट्रोल्ड वे में हम स्टडी को कंडक्ट करेंगे। क्वांटिटेटिव करेक्ट मींस correct. विल फॉलो नॉन पैरामेट्रिक टेस्ट। तो हाँ, तो मींस you are saying that it will be in a controlled manner, because जैसा आपने एग्जांपल कोट किया कि पीयर ग्रुप वाला सैम्पलिंग होगा हमारा, तो it should be in a controlled manner. सर्वे भी even Correct. if we are surveys, then it should be in a controlled manner, na? sure, Is it- obviously. Thank you sir. When you are looking, because basic theme about the qualitative data is to gain the maximum. Sir, but whenever we are This, conducting surveys, if we take the example in qualitative, but in case of qualitative, that will not be in controlled manner. right, that will not be in control. Suppose there is nothing like that's what I told you. Ki there is nothing like that, because you purposefully select the groups Yes, in the qualitative studies. yes, But there it is random in the quantitative. So one part is that ki when you are selecting the this random group or random sampling, when you are doing the random sampling, you are reducing the chances of biasness, right? But here the chance of biasness is there because we have selected the purpose group, right? But again we are reducing that how, with the sir? triangulation. but we That are biasness can be we reduced. are increasing the bias. That's what I'll tell Yes, you sir. with one example. I'm telling you Sir. one example that I have already mentioned. Because you cross-check the questions, you do the cross questioning with those fellows. Suppose if I ask about the age of one individual, or if I ask about a favorite color of an individual, can I do a cross questioning for this question? You can do. You can do. And that cross questioning can allow me to get rid of the biasness, Yes, sir. right or no? Yes, sir. Suppose somebody answers me that he or she likes the blue color, right? Okay. Okay. In alternate way, if I ask him or her, okay, what kind of shirt color or the kurta color you prefer, or what kind of car color, color of the car you will prefer, what kind of ink you prefer while you write. Yes, sir. So this can give me this allows me to eliminate the biasness. Yes, sir. So these such sort of questions we have to add in that survey while Right. doing. Okay, So sir. it is always Reduce the biases. cross-checking the questions. Cross-checking the questions allows us. Suppose if I ask someone, ki in which income group you fall. Suppose somebody writes middle income group, and in the like after 6 or 10 questions, I ask him what is your yearly income. Sir, They write some figure. all right, sir.
So that figure and that thing with what I asked earlier, Initially, if that yes. matches, that is, there is no biasness. But if that doesn't match, then there is a bias. So it is always required to cross-check the Questions. questions. So if you look at certain questionnaires, because what happens actually when you are using the quantitative thing, you have the standard questionnaire which is available, or you design, and what you do, We you design. standardize that questionnaire, because there are methods of standardizing the questionnaires. Normally the people, those who are from the psychology or sociology, Yes, they sir. I'm from psychology. That's why I was asking, sir. so they standardize the questionnaire, because they have certain standard questionnaires for anxiety, depression, right? But in this case, we don't have. In this case, we don't have. Yes, sir. There is no emotional connection. That's why. Right. Right. All right, sir. Thank you, sir. Right. Any other question? So it's almost हाँ जी जी सर। जी सर, मैं आप ये पूछना चाह रही थी, जैसे अभी आपने कहा कि क्वांटिटेटिव जो होता है वो रैंडम सैम्पलिंग होती है उसके अंदर। जी। हाँ, तो सर क्वालिटेटिव के अंदर जैसे अपन डिफरेंट, अभी जैसे आपने एक माउंटेन का एग्जांपल लिया था, उसमें लोकेशन वगैरह अपन चूज जी। करते, तो उसमें भी तो अपने को डिफरेंट डिफरेंट एरिया का पहले अपन मतलब देखेंगे, नहीं मैम, ऑब्जर्व करेंगे, देन देखिए मीना जी, मैंने वहां एक चीज कही थी कि वहां हम ऑब्जेक्ट को छोड़ देते हैं और हम वहां ऑब्जर्वर को पकड़ते हैं। हम उस केस में ऑब्जेक्ट को छोड़ देते हैं, हम क्या करते हैं, ऑब्जर्वर के व्यूज लेते हैं वहां पे। देखिए दोनों चीजें अलग होगी। ऑब्जेक्ट इज समवॉट डिफरेंट और ऑब्जर्वर जो हो गया वो अलग हो गया, और जो ऑब्जर्वर्स के व्यू आते हैं उसके हिसाब से आप उस ऑब्जेक्ट को डिफाइन करते हैं। आपको पता है कि पहाड़ है, लेकिन आप किसके आधार पे, जैसे आज अगर हम कहें कि मैंने इसीलिए एक एग्जांपल लिया था कि एक बिल्डिंग के साइड में या पहाड़ के चारों तरफ, अब पहाड़ की अगर बात करूं तो मैं कितना हिस्सा देख पाऊंगा या आप कितना हिस्सा देख पाएंगे। सेकेंडली, इस सीजन में अगर मैं उस चीज को देखता हूं तो इट विल अपीयर डिफरेंट, लेकिन यही 4 महीने बाद देखूंगा तो डिफरेंट अपीयर होगा। तो वो जो डिफरेंट अपीयरेंस हो रही है उस ऑब्जेक्ट की, वो कौन दे रहा है हमको, ऑब्जर्वर। तो उस ऑब्जर्वर के हिसाब से फिर हम आगे चलना शुरू करते हैं, और जो हमको डिफरेंट ओपिनियंस या डिफरेंट हमको आंसर्स प्राप्त होते हैं उनको हम फिर सम अप करते हैं, देन वी रीच टू अ कंक्लूजन। जी हाँ जी, और कोई, एनी अदर क्वेश्चन? चलिए तो हम नेक्स्ट पार्ट पे चलते Sir, हैं। one more doubt. Sir, if we are doing a case study, suppose I want to know an athlete's psychology. किसी एथलीट साइकोलॉजी जानना है और केस स्टडी कर रहे हैं, तो सर वहां पे पैरामेट्रिक टेस्ट लगाएंगे या दोनों लगाएंगे? That depends कि if you are using or involving the emotional part of that, तो आप उसको अलग तरीके से डील करेंगे, and if you are not dealing with the emotional part of that, तो फिर आप उसको अलग तरीके से डील करेंगे। That depends कि आप अपना फोकस क्या करते हैं उस रिसर्च के अंदर। सर could you please quote like जैसे हम उनकी परफॉर्मेंस के बारे में बात करते हैं, तो परफॉर्मेंस को हम कंपेयर तो नहीं कर रहे हैं? परफॉर्मेंस को हम कंपेयर नहीं कर रहे। एक्चुअली आई एम नॉट गेटिंग व्हाट यू आर आस्किंग कि कंपेयर नहीं कर रहे, वेदर इट इज प्योर क्वालिटेटिव थिंग्स कि वेदर दे हैव परफॉर्म। कंपेयर कर रहे हैं देन आई विल गो फॉर डायरेक्टली, आई विल गो फॉर क्वालिटेटिव, राइट, है ना? तो आई एम नॉट गेटिंग कि अगर मैं किसी का केस स्टडी करूं तो उसमें मैं खाली मींस क्वांटिटेटिव स्टडी ही करूं या फिर कुछ ऐसा? नॉर्मली केस स्टडीज जो हो रही हैं उनमें मैक्सिमम में क्वालिटेटिव स्टडीज ज्यादा होती है इंस्टेड ऑफ क्वांटिटेटिव, बिकॉज कि मोस्ट ऑफ द टाइम व्हेन दे गो फॉर द क्वांटिटेटिव थिंग, तो केस स्टडीज में वो लोग कम क्वांटिटेटिव डेटा को यूज करते हैं।
ठीक है क्वालिटेटिव डेटा ज्यादा लिखते हैं, बिकॉज की जब केस स्टडीज होती है तो दे गो फॉर द डिस्क्रिप्टिव पार्ट ऑफ ईच एंड एवरी एस्पेक्ट ऑफ दैट थिंग। मीन्स मेरे को इन्वॉल्व करना पड़ेगा सेकेंडरी डाटा मैक्सिमम। बिल्कुल। थैंक यू सर, थैंक यू। चलिए नेक्स्ट करें। So if we move next to the second part, what are the different approaches? तो रेंज ऑफ मेथड्स एंड डिजाइन जो मैंने कहा कि बहुत सारी चीजें जो है उसके साथ में इन्वॉल्व होती है। 6 इसकी जो है वो अप्रोच, सॉरी इसकी अप्रोचेस जो है, दैट इज इथनोग्राफी, फेनोमेनोलॉजी, ग्राउंडेड थ्योरी, केस स्टडीज है, पॉजिटिव डेविएंट अप्रोच है, पीयर ग्रुप अप्रोच है, पार्टिसिपेटरी एक्शन रिसर्च जो है वो सारी अप्रोच है। फर्स्ट इफ विल टॉक अबाउट द इथनोग्राफी, तो इथनोग्राफी इज समथिंग सोशल और कल्चरल एंथ्रोपोलॉजी के साथ में ज्यादा होती है। दैट मीन्स यू आर इन्वॉल्विंग द सोशल एंड कल्चरल एस्पेक्ट ऑफ दैट पर्टिकुलर थिंग, तो उसके साथ में होती है। एंड सेकेंडली रिसर्चर इज अगेन डायरेक्टली इन्वॉल्व इनटू द पार्टिसिपेंट्स एनवायरनमेंट, की वो सारे पार्टिसिपेंट एनवायरनमेंट के साथ में इन्वॉल्व। सर आपकी पीपीटी शेयर नहीं है। ओके, वही मैं कहने वाला हूँ। सॉरी आई फॉरगॉट टू शेयर। Is it visible now? यस सर, राइट। यस। वो इथनोग्राफी की जब हम बात कर रहे थे तो वो सोशल और कल्चरल एंथ्रोपोलॉजी के साथ में चलती है चीजें, और रिसर्चर जो है वो डायरेक्टली इन्वॉल्व होता है। द क्वेश्चन यू आस्क मी राइट नाउ अबाउट द एथलीट, तो यहाँ पे उस चीज के साथ में, ऑल्दो इट इज नॉट डायरेक्टली रिलेटेड विद द इथनोग्राफी, बट वन हैज टू बी इमर्स्ड इन द पार्टिसिपेंट एनवायरनमेंट व्हेन यू आर स्टडीइंग दैट। तो जहां पे आप एथलीट के साथ में सारी चीज बात कर रहे हैं या उन चीजों की बात कर रहे हैं, तो वहां पे उस चीज के साथ में, ऑल्दो आई हैव गिवन टू मोर डेफिनेशंस ओवर हियर, जो कि आपको कहीं भी मिल जाएगी। मैं उनको रीड भी नहीं करूंगा, उनको एक्सप्लेन भी नहीं करूंगा बहुत ज्यादा, बिकॉज की वी आर रनिंग शॉर्ट ऑफ टाइम, क्योंकि इसमें कुछ ज्यादा हमारे पास है। Now ethnography is well form of qualitative focus. What is the culture of a group of people? Culture and group of the people. Normally culture की जब हम बात करते हैं तो culture and group of the people जो है वो उसके बारे में बात करेंगे। Suppose very good example you have given me, that is the athlete, that is the culture of the athlete. So उसके बारे में हम बात करते हैं। तो ethnographic जो है that is the portrait of the people, कि लोग किस तरीके से portray करते हैं। और डिस्क्रिप्टिव स्टडीज, कल्चर और द लोगों का जो डिस्क्रिप्टिव स्टडीज है, कल्चर है, उसके बारे में इस चीज को किया जाता है, या इस अप्रोच को यूज किया जाता है इथनोग्राफी में। सपोज अगेन मैं यहाँ पे बात करूँ तो स्पेशली दिस विल बी मोर यूजफुल फॉर द पीपल दोज हु आर वर्किंग, अगेन आई एम टेलिंग द पीपल इन द इथनोबायोलॉजी और इथनोजोलॉजी और इथनोबॉटनी, उन लोगों के लिए कुछ ज्यादा काम का हो जाएगा, बिकॉज की दैट इन्वॉल्व्स द कल्चर एंड द different peoples, or some people those who are doing research in anthropology or social anthropology or medical anthropology, उन लोगों के लिए ये बहुत ज्यादा important हो जाती है। There are different appropriate methods of the ethnography. जो उनका डेटा कलेक्शन जो होता है इथनोग्राफी में, जिसमें फॉर्मल और इनफॉर्मल इंटरव्यूइंग दोनों होती है। फॉर्मल इनफॉर्मल इंटरव्यूइंग जो होती है दैट अगेन डिपेंड्स कि आप पेन पेपर लेके बैठ के सेट ऑफ क्वेश्चंस आपके पास रेडी है, तो दैट इज इन फॉर्मल काइंड ऑफ इंटरव्यूइंग। और अगर आप दूसरे तरीके से आप उसको करते हैं, दैट इज कॉल्ड एज इनफॉर्मल इंटरव्यूइंग। किसी आर्बिट्री आपने क्वेश्चन पूछने शुरू कर दिया उस एस्पेक्ट के बारे में, देन यू एनालाइज, तो वो सारी चीजें हैं। अगेन सेवरल ओकेजन जो है, पार्टिसिपेंट का ऑब्जर्वेशन जो है, उन सारी चीजों के बारे में आप बात करते हैं, तो वो उसके लिए अप्रोप्रिएट मेथड जो होते हैं वो इथनोग्राफी के लिए होते हैं। इथनोग्राफी जो है किसी भी तरीके के एग्जाम्पल या किसी भी तरीके की चीज को कि आप किसी एक पर्टिकुलर ग्रुप के अंदर, किसी पर्टिकुलर कल्चरल सोसाइटी के अंदर किसी आप स्टडी को करते हैं, तो वो दैट इज। तो हियर आई हैव गिवन वन एग्जांपल कि अगर आपने ऑक्यूपेशन ऑफ सीनियर्स विद द डिमेंशिया, अगर भूलने की एक बीमारी होती है डिमेंशिया, तो उस चीज के साथ में आपने उसको देखना शुरू किया, तो दैट इज वन एग्जांपल जो कि इस तरीके से होता है। लेकिन ये सारा जो होगा दैट इज बेस्ड ऑन द इंटरव्यूज, बिकॉज की यू आर नॉट डीलिंग डायरेक्टली, और मैं ये कहूँ कि उनके क्लिनिकल सिम्टम्स के साथ आप डायरेक्टली डील नहीं कर रहे, उनके एक्सपीरियंस के साथ में डील कर रहे हैं। बिकॉज की यहीं पे फर्क जो आ जाता है, जैसे डिमेंशिया की अगर हम बात कर रहे हैं,
या किसी एक पर्टिकुलर डिजीज की बात कर रहे हैं, तो जहाँ क्वांटिटेटिव रिसर्च की बात आती है तो वहां हम क्लिनिकल डेटा के साथ में डील करना शुरू करते हैं। बट यहाँ पे जब हम बात करते हैं तो हियर वी टॉक अबाउट द देयर एक्सपीरियंसेस, कि किस तरीके के एक्सपीरियंसेस वो फील करते हैं, तो वो सारी चीजें हैं उनके साथ में हम बात करते हैं। तो दिस डिपेंड्स। Second aspect of this is phenomenology. Phenomenology is something approach to philosophy and method of inquiry, and its aim to generate an exhaustive description of phenomenon. किसी भी एक phenomena के लिए अगर हम किसी भी तरीके की अप्रोच, फिलोसफिकल अप्रोच जो यूज करते हैं, दैट इज कॉल्ड एज phenomenology. And this depends on everyday experience, understanding जो होती है उसके ऊपर डिपेंड करती है, and it is based on the interpretations. And the interpretations can be different for the different people, or a particular line can be interpreted in a different manner by different people. कि कोई भी एक चीज जो है या कोई भी एक रिजल्ट जो है या उनका उनके द्वारा कही गई बात जो है वो किसी भी तरीके से किसी भी व्यक्ति के द्वारा अलग अलग तरीके से इंटरप्रेट की जा सकती है। इट अगेन डिपेंड्स, जो है कुछ तरीके के सर्टेन एक्सपीरियंसेस को करती है कि शेयर करती है कि इट्स Excuse me, sir. Sir, slides are not moving to next. राइट, Slides are not moving, sir. इज इट ओके? Sir, slides are not moving. स्लाइड्स आर Sir, नॉट 42 slide is It's stagnant. Yes. अभी Yes, Now sir. it's working. Working, sir. वर्किंग, तो अगेन Yes. आई एम शिफ्टिंग टू द तो यू वी वर ऑन द 42. आप 42 के बाद मूव नहीं किया इसने? नहीं No, sir. sir. No, sir. अभी अभी आपको फिनोमेनोलॉजी लिखा हुआ दिख रहा है? Yes, yes, yes. Yes, sir. Right now? Yes, sir. Right now? Currently, slide number 47. Yes. 47. ओके फाइन. सो जब मैं फिनोमेनोलॉजी की बात कर रहा था तो फिलोसफिकल मेथड है किसी भी डिस्क्रिप्शन को जनरेट करने की, और मैंने ये कहा कि किसी एक पर्टिकुलर एस्पेक्ट का या किसी एक पर्टिकुलर चीज की जो है वो इंटरप्रिटेशंस जो है वो अलग अलग आदमी अलग अलग तरीके से करता है. अगर मैं ये कहूँ कि किसी एक पर्टिकुलर, एक छोटा सा एग्जांपल मैं मेरे स्टूडेंट्स को भी देता हूँ कि हाउ द इंटरप्रिटेशन इज डन बाय डिफरेंट पीपल, आप लोगों के साथ भी शेयर करता हूँ कि कैसे जो है वो ऑक्यूपेशन जो है किसी एक पर्टिकुलर लाइन के या किसी एक पर्टिकुलर फिनोमिनन तो नहीं है, देयर इज वन थिंग, कैसे इंटरप्रिटेशन डिफरेंट होता है. तो यहाँ फिनोमिनोलॉजी में भी यही चीज है कि आप उसको कैसे डिफरेंटली इंटरप्रेट करते हैं लोग, किस तरीके से उस चीज को करते हैं. आई हैव वन लाइन, देयर इज एक राजा था, बहुत छोटा सा कहानी है, उसी को मैं बात करता हूँ. एक राजा था, उसने एक आदेश दिया अपने सबऑर्डिनेट्स को कि 1 लाख का गज लाओ. यू गॉट माई पॉइंट? 1 लाख का गज लाओ. तो उसके जो कोर्टियर्स थे उसमें अलग अलग तरीके के लोग थे. तो वन जो कि उनका सेनापति था या जो सेना से डील करता था, तो उसने सुना 1 लाख का गज लाओ. सो ही ब्रॉट 1 एलिफेंट ऑफ 1 लाख. दूसरा जो वहां पे एक बहेलिया बैठा था उसने ये सुना 1 लाख कागज लाओ. ही बर्न 1 लाख क्रूज. और एक तीसरा जो स्टोर कीपर था उसने सुना 1 लाख कागज लाओ. सो ही ब्रॉट 1 लाख पेपर्स. सो वन लाइन, different interpretations, and these different interpretations depends on their mental state, their understanding of the phenomenon, कि उन्होंने क्या सोचा, क्या समझा और क्या किया. तो वो सारी चीजें जो है उसके साथ में होती है. तो यहाँ पे सिर्फ कहने का मतलब यही था कि जो भी चीज हम वहां बात कर रहे हैं वो जो चीज होती है वो उसके इंटरप्रिटेशंस के ऊपर डिफरेंट करती है. लेकिन जब इस तरीके की चीज की बात की जाती है, जब हम फिनोमिनन की बात की जाती है, तो फिनोमिनन के साथ में हम एक चीज कहते हैं कि इट शुड बी यूनिवर्सल. इट कैन नॉट बी वेरीड. बहुत अलग तरीके की नहीं हो सकती हर चीज के लिए. अगर हम फिनोमिनन की बात करते हैं, हम आज बात करते हैं कि बहुत छोटा सा एग्जांपल देता हूं. द रोजेस स्मेल स्वीट.
तो वो सारी चीजें उसके साथ में आती है। तो ये हमेशा यूनिवर्सल होना चाहिए। तो दैट मीन्स कि वो जो पर्टिकुलर चीज जो है या जो फिनोमिनन की हम बात कर रहे हैं, वो रिसर्चर और उसके साथ में जो भी पार्टिसिपेंट्स इन्वॉल्व हैं उनके लिए सेम होना चाहिए। इट शुड नॉट बी डिफरेंट। और इसीलिए जब हम शुरू से जब हम क्वालिटेटिव रिसर्च की बात कर रहे हैं तो हम कह रहे हैं कि उसका जो रिसर्चर है उसका इन्वॉल्वमेंट पूरा होना चाहिए, चाहे वो इथनोग्राफिक हो चाहे वो फिनोमिनल हो। क्योंकि इथनोग्राफिक में अगर हम कहते हैं तो उसको उस सोसाइटी के साथ में बराबर मिलना होता है, उस सोसाइटी के साथ की तरीके की चीजें उसके अंदर इंटरमिंगल होना पड़ता है। और यहाँ पे जब बात करते हैं तो यहाँ हम कहते हैं कि वो फिनोमिनल सेम होना चाहिए, तो वो उसके साथ में चलती है। फिर उसके बाद में आते हैं किस तरीके से इंटरमिंगलिंग होती है। कि अगर हम कहें कि यहाँ वेन डायग्राम जो है दैट एक्सप्लेन्स कि हाउ द फिनोमिनन इज सेम, कि बिकॉज दे ऑल आर थिंकिंग इन वन डायरेक्शन। सो जहां पे तीनों का इंटरमिंगलिंग है तो वो फिनोमिनन जो है उसके बारे में जब पार्टिसिपेंट 1 2 जो बात कर रहे हैं वो उसके साथ की बात इसके साथ But sir, there will be, but sir, every time there will be individual difference. So every researcher will get different results. yes, So, but yeah. it is yes, you are right, they will have. But when we are reaching or when we are talking about the phenomenon, so for the phenomenon there is one thing which is, that is, it should be universal. Phenomenons are always universal. Phenomenons never deviate. Pardon? If somebody is asking, someone is asking something. किसी ने कुछ पूछा? नो सर, चलिए, बट सर हाँ, स्लाइड शायद फिर से मूव नहीं हो रही है। कहाँ पे है हम अभी? अभी दिख रहा है 52? जी सर। यस सर 52 दिख रहा है अब। अभी भी 52 है? यस 53 आ गया? नहीं आया। नहीं आया? यस चलिए तो हम 50 इसी हाँ मोड में रखते हैं। 53 आ गया सर, आ गया अब। थोड़ा सा स्लो हो रहा है। चलिए हम इसी मोड यस में रखते हैं, है ना। इसी मोड में आप लोगों को थोड़ी सी आसानी हो जाएगी, ताकि ठीक है। है ना। चलिए, तो मैं कह रहा था कि उनकी जो फिनोमिनन जो है, नॉर्मली फिनोमिनन्स आर यूनिवर्सल, नॉट नॉर्मली, इट इज ऑलवेज। कैन यू टेल मी कि देयर आर डिफरेंट फिनोमिनन फॉर वन पर्टिकुलर थिंग? एनीबडी कैन टेल मी कि कोई अलग अलग फिनोमिनन है किसी एक पर्टिकुलर चीज के लिए? I guess there is nothing like that. No, sir. I raised this question because I was just thinking if I'll conduct any study or research work, then my views will be different. And if somebody else, other psychologist, he'll do the study, then there will be variation. Okay, okay, fine. Then I got you. So there may be variation, but there may not be variation in the phenomenon. That variation may be in the application part, True, sir. right? That variation may be in the your methodological part, right? Suppose if I take one example, any example from your psychology phenomenon? Okay, as suppose we take the feedback from the Olympians, what they are feeling right now after like winning the matches at Olympics. So After where is that- the phenomenon? Where the phenomenon lies in this? Like their feelings, what they are actually feeling after getting a medal. Feeling is not a phenomenon. Okay, fine, I do agree. So Sir. what kind of thing you are expecting? No, What kind of thing you are expecting in this? so how to start, sir? If we are doing this phenomenology, you are saying now, if we are conducting qualitative study on this topic, so how to execute? Mhm. What should be our So, approach? okay, fine. I got it. What you are asking. So Sir. I again came to the first slide of the phenomenology. Let us discuss this.
to philosophy and the method of inquiry, right? There are two things. One is philosophy and the method of inquiry aim to generate an exhaustive description of phenomenon of everyday experience to achieve an understanding more than the description and based on the interpretation. So what is there? There are two things. One is philosophy and one is method of inquiry. So what you have asked, that is, how do they feel or what are their feelings after winning a medal in Olympics, right? Sir. Right. So there are two things. Fine, I go with two things. There is one thing, that is winning a medal is a phenomenon, Yes, sir. and winning gold, silver or bronze. Is it a phenomenon? It is, sir. It is not a phenomenon. When you are Why, talking sir? about, I'm telling Yes, you, yes. I'm telling you about this thing. It is purely a thing which is based on their performance, right? Whether you are whether you secure first position, second position, and third position. So there may be a grief of not getting the first position, Okay, sir. but you will be always happy to have an Olympic medal, right? Okay, sir. Got my point? Yes, yes, sir. I got it. It is not all about the position, sir. Yes, sir. It is not all about the position. It is all about the happiness what he or she is feeling after winning a medal, Madam. right? Right, So sir. that is that part. And you share. I think you might have seen the movie Dangal. Sorry, sir. Pardon, sir. आप लोगों ने दंगल पिक्चर देखी है क्योंकि इसी से रिलेटेड है. And Yes, this sir. example Have seen, sir. you have seen. And what you are asking, Yes. that is related with that movie, Somehow, yes, somehow we can relate, sir. right? So this is the thing. Thank you, sir. And there are different phenomena. And now the answers are there, what you was asking. So there is a phenomenological approaches involves happiness, fear, and anxiety. And what okay, there are some examples of medicine part also, because कि कहीं उसके साथ में दिया था. तो but basically यहाँ पे अगर हम बात करें तो it involves the several things. So it does not necessarily provide the definitive explanation. कि आपको बहुत definitive explanation नहीं देगा, but एक अवेयरनेस रेज करता है कि भाई इस चीज के बाद में उनको प्रसन्नता हुई, उनको ये चीज हुई. सो आपकी जो चीज थी, व्हाट यू वाज आस्किंग, दैट वाज विनिंग द मेडल वाज हैप्पीनेस, बट उसका दूसरा एस्पेक्ट जो था, विनिंग नॉट विनिंग द गोल्ड मेडल वाज एन अनदर एस्पेक्ट. दैट वाज नॉट एन फिनोमिनन. नाउ वी हैव द ग्राउंडेड थ्योरी. ग्राउंडेड थ्योरी की बात करते हैं. So grounded theory, it's an inductive method for qualitative analysis that generates theory from the data. So basically, whatever data you have, whatever qualitative data you have, उसके आधार पे आप एक theory जो है वो generate करना शुरू करते हो. और generation of theory जो है, that is always connected with the data, कि वो आपके data के साथ में connected होगी. There are different methods of this thing. One is called as inductive method, जहाँ पे की theory जो है वो data से emerge होती है. दूसरी जो होती है deductive theory, where जो researcher जो है start an abstract idea और उसके वो क्या करता है, data को collect करना शुरू करता है या उसकी चीजों को ढूंढना शुरू करता है. ग्राउंडेड थ्योरी की अगर हम बात करें तो देयर आर 6 मेजर कंपोनेंट्स. थ्योरेटिकल सैम्पलिंग है, थ्योरेटिकल सेंसिटिविटी है, कांस्टेंट कंपैरिजन है, रेजिंग द लेवल ऑफ सेक्शन है, कोडिंग थ्रू कॉन्सेप्चुअलाइजेशन है, और आइडेंटिफिकेशन ऑफ द बेसिक सोशल प्रोसेस दैट डिस्क्राइब द पैटर्न ऑफ फिनोमेना. थ्योरेटिकल सैम्पलिंग की बात करूं तो थ्योरेटिकल सैम्पलिंग स्लाइड मूव नहीं कर रही है, सर. टाइटल अभी फॉर, कहां पे है? इट इज टाइटल फॉर phenomenological approaches. Okay, fine, Yes. we'll go with this, right? So there is something component जो है वो की component जो है आपके grounded theory के, that is theoretical sampling है, theoretical sensitivity है, constant comparison है, raising the level of abstraction है,
coding through conceptualization and identification of the basic social process that describe the pattern of phenomena, उस चीज के बारे में वहां पे चीजें होती है। अगर हम बात करते हैं तो थ्योरेटिकल सैम्पलिंग की बात करते हैं, तो थ्योरेटिकल सैम्पलिंग जो है दैट इज प्रोसेस ऑफ कलेक्शन ऑफ डेटा फॉर जनरेशन ऑफ द थ्योरी और जनरेटिंग अ थ्योरी। तो आप जो भी डेटा कलेक्ट करते हैं उसके बाद जनरेटिंग अ थ्योरी, तो उस थ्योरी को जनरेट करते हैं। जैसे कि अगर अभी हम कहें कि हमारी एक थ्योरी जनरेट करूं मैं कि अगर हम सभी पास होते हैं तो हम सब खुश होते हैं, राइट? दिस इज ए जनरल थ्योरी, दिस इज जनरल फिनोमेना। बट उसके बाद में जो दूसरी चीजें हैं उन सारी चीजों के बाद में आती है। तो जो एनालिस्ट जो होता है वो क्या करता है, कोड से एनालाइज करता है, डेटा को डिसाइड करता है कि नेक्स्ट आगे हमको करना है या नहीं करना है। तो बेसिकली इट इज जनरेशन ऑफ द थ्योरी। फिर उसके बाद थ्योरेटिकल सेंसिटिविटी की बात करता हूँ। तो थ्योरेटिकल सेंसिटिविटी जो है थिंकिंग अबाउट द डेटा इन द थ्योरेटिकल टर्म्स, कि आप थ्योरेटिकल टर्म्स में उस डेटा के बारे में सोचने लग जाते हो, उसके बारे में डिस्क्रिप्टिव और चीजों के बारे में नहीं सोचते, तो वो जो है उस चीज के साथ में थ्योरेटिकल सेंसिटिविटी उसके साथ में। थर्ड थिंग इज दैट यू ऑलवेज डू अ कांस्टेंट कंपैरिजन, कि आप जैसे जैसे डेटा इकट्ठा करते जाते हैं उस डेटा के साथ में आप लगातार कांस्टेंट जो है वो कंपैरिजन करते जाते हैं, स्पेशली इन द ग्राउंडेड थ्योरी। मतलब कहने का मतलब ये हो गया कि आपका डेटा कलेक्शन और आपका कंपैरिजन जो है वो साथ साथ चल रहा है, अर्थात ये कहूं कि दैट इज साइमल्टेनियस। सो इट बिकम्स अ साइकिल जो कि उस साथ में चलता रहता है। फिर उसके बाद में इंडक्टिव या डिडक्टिव अप्रोच यूज करता है, और वो इंडक्टिव और डिडक्टिव अप्रोच को यूज करने के बाद में एक एब्डक्शन के ऊपर पहुंचता है। तो एब्डक्शन इज समथिंग जहां पे कि आप नया डिस्कवर करते हैं, एक नए कॉन्सेप्ट को देते हैं। तो ये पूरा एक प्रोसेस जो है उस थ्योरी के अंदर अगर हम बात करें कि देयर इज आपने एक थ्योरी को डिड्यूस किया, और उस थ्योरी को डिड्यूस करने के लिए आप इंडक्टिव मेथड से डेटा को कलेक्ट करते हैं। और ये जब इंडक्शन और डिडक्शन के साथ में आप एब्डक्शन के मतलब यू प्रपोज अ डिफरेंट काइंड ऑफ कॉन्सेप्ट, एंड दैट कॉन्सेप्ट व्हेन इट इज वैलिडेटेड, और जब इसको बार बार वैलिडेट कर दिया जाता है तो वो सारी चीजें जो है वो एक फिनोमिनन की तरह आ जाती है। अब जब वो कॉन्सेप्ट करते हैं तो सरप्राइजिंग फिनोमिनन के द्वारा भी कर सकते हैं, कि सपोज अगर आज हम कहें कि जो की चीज है कि किसी एक पर्टिकुलर एस्पेक्ट के लिए हम कुछ उल्टा कहना, उल्टा फिनोमिनन डिसाइड करते हैं जो कि बरसों से चला आ रहा है। उसके लिए जैसे मैंने आपको कहा कि शुरू में एक बहुत एग्जांपल लिया था कि इनिशियली इट वाज सेड कि द अर्थ इज फ्लैट, नाउ इट इज, और आफ्टर दिस थिंग की अर्थ इज स्फेरिकल। तो वो जो फिनोमिनन के साथ में या जो एक सरप्राइजिंग कॉन्सेप्ट जो दिया गया उसके साथ में जो होते हैं वो सारी चीजें, और इन सारी चीजों को जब आप अबडक्शन मेथड यूज कर रहे हैं या आप ग्राउंडेड थ्योरी यूज कर रहे हैं जिसमें इंडक्शन और डिडक्शन के साथ में एक आप नई थ्योरी दे रहे हैं, तो वो प्री एग्जिस्टिंग नॉलेज के बेसिस पे एक्सप्लेन नहीं कर सकते हम उसको नॉर्मली एक्सप्लेन करते हैं हमारे जो करंट डेटा होते हैं, करंट रिजल्ट्स होते हैं, उसके आधार पे हम उसको एक्सप्लेन करते हैं। फिर उसके बाद में हम उसको एब्स्ट्रक्शन करते हैं कि हम किस तरीके से डेटा कलेक्शन मेथड्स के साथ में हम उसको करते हैं। तो देयर आर डिफरेंट मेथड्स जिसके हिसाब से हम डेटा कलेक्शन करते हैं। ऑलमोस्ट जो क्वालिटेटिव डेटा है वही क्वालिटेटिव डेटा के लिए जो हमारे पास डेटा कलेक्शन मेथड्स है जो हमने पहली स्लाइड के अंदर या दूसरी स्लाइड के अंदर देखे थे, ऑलमोस्ट वो सारे जो मेथड्स हैं वो हम इसके अंदर यहाँ पे यूज करते हैं। फिर उसके बाद में हम कोडिंग थ्रू कॉन्सेप्टलाइजेशन की ग्राउंडेड थ्योरी के अंदर अगर आप कहें तो देयर इज वन थिंग व्हिच इज कॉल्ड एज कोडिंग। हाउ मेनी ऑफ यू आर अवेयर विद द कोडिंग थिंग? आप में से कितने जने रिसर्च में कोडिंग के लिए जानते हैं कोडिंग को? यस सर, थोड़ा बहुत सर कल ही थोड़ा पता चला था कि कोडिंग भी मतलब जानना पड़ेगा अगर इफ वी आर कंडक्टिंग कंसेप्चुअल रिसर्च। कोडिंग इज व्हाट? कैन यू एक्सप्लेन मी? नो सर, नॉट श्योर सर। Okay, fine. Coding is something that is making things blind. अगर मैं कहूँ बहुत दूसरी तरीके से, सपोज मैंने कोई डेटा कलेक्ट किया, राइट? यस मैंने सर। एक डेटा कलेक्ट किया, उस डेटा के लिए मैं बायस हो सकता हूँ, ओके?
I may be biased for my data, right? हाँ जी सर. Right? अगर उस डेटा को कलेक्ट करने के लिए I was having different groups. Suppose I am performing a study on the sleep, and where I have taken two different groups, male and female, right? अब वो मेल और फीमेल जब मैंने डेटा कलेक्ट किया तो आई वाज नोइंग दिस थिंग कि ओके फाइन, दिस इज फ्रॉम द मेल, दिस इज फ्रॉम द फीमेल, एंड इफ आई टेल टू माय फ्रेंड और टू माय टीचर कि प्लीज कोड इट, अब वो उस मेल और फीमेल को जो है वो दूसरा नाम दे देते हैं, एंड विच आई एम नॉट नोइंग. तो वो जो चीज आती है, दैट इज फॉर द अनबायस्ड एनालिसिस ऑफ द रिजल्ट्स, यू कोड द थिंग्स. कि आप तीसरे व्यक्ति को कह के आपके अपने ग्रुप्स को क्या कर देते हैं, कोड कर देते हैं. कोड कर देते हैं दैट मीन्स कि आपके पास में उस पर्टिकुलर ग्रुप की आइडेंटिटी रिवील नहीं हो रही. सर जैसे एग्जाम्पल इफ आई एम राइट, वो जैसे हमारा बोर्ड्स में नोटबुक्स जो होती है हमारी उसे बिल्कुल बिल्कुल ठीक, बिल्कुल ठीक, बिल्कुल ठीक. थैंक यू सर. बिकॉज वी राइट सम नंबर ऑन दैट. आपका रोल नंबर है, राइट? यस सर. उस रोल नंबर से आपकी आइडेंटिटी डिस्क्लोज हो सकती है, डिस्क्लोज हो सकती है, बट हाँ नहीं करते. ठीक है अगर उस रोल नंबर को मास्क कर दिया जाए सर. और उस मास्क करने के बाद में कोई एक डिफरेंट नंबर दे दिया जाए आपको, तो वो आपकी आइडेंटिटी डिस्क्लोज नहीं करता, राइट? यस सर. तो दैट इज रिक्वायर्ड फॉर अ कॉन्सेप्चुअलाइजेशन रिसर्च. इफ यू आर डूइंग सम कॉन्सेप्ट रिसर्च, तो उसकी आपको बिल्कुल जरूरत पड़ेगी. नॉर्मली आज की तारीख में ये चीजें प्रैक्टिस में नहीं है. बहुत जगह पे ये चीजें प्रैक्टिस में नहीं. सर कंसेप्चुअल में तो हम इमोशन, वो थ्योरी भी यूज कर सकते हैं जिसमें इमोशन जेस्चर्स भी रीड कर रहे हैं, बट वो बिल्कुल तो बिल्कुल. फर्स्ट पर्सन है, वो ही अच्छे से जानता है. एंड इफ वी आर इसीलिए देखिए फिर वापस वही है कि जब थर्ड पर्सन को, जब, हाँ बिल्कुल ठीक बात है. अब यहाँ पे वही चीज है कि जो फर्स्ट पर्सन जानता है. इसीलिए मैंने आपको यहाँ पे एक चीज कही कि जब क्वालिटेटिव डेटा कर रहे हैं तो क्वालिटेटिव डेटा के साथ में हमको उस बायसनेस को कम करने के लिए वी हैव टू अडॉप्ट डिफरेंट मेथड्स. सर और जब आप वो डिफरेंट मेथड्स यूज करते हैं तो उस चीज के साथ में वहां पे आपको जाना पड़ेगा. सो एवरीथिंग is revolving around to reduce the biasness or to correct to get the correct interpretation or the correct results, right? जैसे आपने बताया कि क्वेश्चंस को हम रिपीट कर देंगे, है ना? हाँ, हाँ ठीक है. उसका लैंग्वेज आप चेंज कर दीजिए, उसको आप रिपीट कर दीजिए, तो आपको सारी चीजें कम हो जाए. हाँ, to right? get the specific answer. Yes sir, ठीक है सर, थैंक यू. फिर उसके बाद में पैटर्न और फिनोमिनन के लिए जो है वो अगर हम बात कहें तो थ्योरी जो है हमारी, जो वो फुली डेवलप्ड थ्योरी जो रिसर्चर डेवलप करता है, वो सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन दैट एक्सप्लेन्स द रिलेशनशिप अमंग द कॉन्सेप्ट एंड इल्यूमिनेट्स द एक्शन एंड इंटरेक्शन ऑफ द पार्टिसिपेंट्स. जो आप चीज पूछ रही थी वो यहाँ पे है कि वॉट एवर इज देयर, वो जो भी एक्सप्रेशन है वो सारी चीजें वहां पे आ रही है. और क्वालिटेटिव डेटा को जब हम प्रोसेस करते हैं और उसको करते हैं तो सोशल फिनोमिनन जो है वो ओवर द टाइम को हम एक लंबे पीरियड तक हम उसको स्टडी करते हैं. और उस चीज का जैसा मैंने शुरू में ही कहा था कि क्वालिटेटिव स्टडीज जो होती है वो लंबे पीरियड तक चलती है. बिकॉज कि आपको जब लंबे पीरियड तक चलती है तो देयर यू हैव टू डील विद मेनी पीपल, बिकॉज कि वहां पे हमको बहुत सारी लोगों के साथ में बात करनी, बिकॉज कि हमारे पास वहाँ कंट्रोल ग्रुप नहीं है. उस कंट्रोल ग्रुप के साथ में हम बात नहीं कर सकते, तो हमको उसी में से कंट्रोल डेटा एक्सपेक्ट करना होता है. तो उसी चीज के साथ प्रोसेस जो होते हैं, बेसिक सोशल साइकोलॉजिकल प्रोसेस जो होते हैं, उसके अंदर अगर हम बात करें तो डिफेंसिव मॉडलिंग होती है, जहाँ पे So what do you mean by long duration? Like it may go up to what, sir? It may go up to 6 महीने, 8 महीने, साल भर. Like when you do some qualitative research, you try to finish up your data within 15 days or 10 days for your questionnaire time, and rest of the time you devote for the analysis part, right? Yes sir. Yes sir. But here it is a long-term study. Sometimes you will find some studies which are carried out for 2 years or 3 years. Okay sir. तो वो सारी चीजें उसके साथ में आती है.
ठीक है Right? सर, थैंक यू। There are two examples. I'm not going into the details of that. Now the case studies. केस स्टडी जो है वो किसी भी फिनोमिनन को वैरायटी ऑफ डेटा सोर्सेस के साथ में चढ़ती है। ये जो है इट इंश्योर्स दैट द इशू इज नॉट एक्सप्लोर्ड। कि केस स्टडीज में जो है वो पर्टिकुलर जो आप एस्पेक्ट की बात कर रहे हैं वो एक्सप्लोर नहीं किया जाता एक लेंस के या एक ही क्या कहें उसको, इट इज नॉट एक्सप्लोर्ड थ्रू वन लेंस। की आप एक ही चश्मे से सारी दुनिया को नहीं देख रहे। अगर मैं हिंदी में कहूँ तो वो सारी चीजें हैं कि यू हैव टू यूज डिफरेंट डिफरेंट अप्रोचेस फॉर दैट। केस स्टडी जो है वो नॉर्मली सिंगल यूनिट या पर्सन के साथ में, यूनिट या पर्सन के साथ में आप कर सकते हैं। एक सिंगल केस स्टडी भी हो सकती है। नॉर्मली सिंगल केस स्टडी या सिंगल पर्सन के साथ में या सिंगल यूनिट के साथ की केस स्टडीज जो होती है दे आर नॉर्मली विद द पैथोलॉजिकल कंडीशंस और इन द मेडिसिन। बिकॉज ये एक पर्टिकुलर डिफरेंट केस आता है तो वो केस स्टडी की तरह प्रेजेंट किया जाता है। बिकॉज कि दैट कैन नॉट बी जनरलाइज। वो केस स्टडी जो है वो एकदम से बहुत ज्यादा जनरलाइज नहीं की जा सकती, या किसी एक पर्टिकुलर ऑर्गेनाइजेशन या किसी एक पर्टिकुलर इंस्टीट्यूशन के लिए भी किया जा सकता है। तो दैट इज कि वहां पे कुछ यूनिकनेस है तो उस चीज के लिए किया जा सकता है। तो वो केस स्टडीज वहां पे काम में आती है। केस स्टडीज रिसर्च जो है वो कॉम्प्लेक्सिटी उसमें बहुत ज्यादा भी हो सकती है, बहुत कम भी हो सकती है। सपोज जैसे मैंने, अगर आपके पास में एक डिफरेंट केस आता है, सिंस यहाँ मेडिकल साइंस से कोई नहीं है, डिफरेंट केस आता है तो उसके अंदर कॉम्प्लेक्सिटी इतनी नहीं होगी। लेकिन किसी ऑर्गेनाइजेशन के लिए स्पेशली दिस केस स्टडीज आर मोर रिलेवेंट टू द पीपल दोज हु आर डूइंग रिसर्च इन मैनेजमेंट और इन द साइकोलॉजी और इन द सोशियोलॉजी। तो उनके लिए केस स्टडी जो है वो ज्यादा इम्पोर्टेंट हो जाती है। तो वो वहां पे उनकी कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ द केस स्टडी जो है वो रिसर्चर खुद तय करता है कि मेरे को इसको कितना कॉम्प्लेक्स बनाना है। लेकिन जब वो कॉम्प्लेक्स बनाते हैं या एनालिसिस तो वो करते हैं तो उसके लिए आपको वापस ड्यूरेशन जो है उस पर्टिकुलर चीज का बढ़ाना पड़ता है, या उस स्टडी का ड्यूरेशन जो है हमको बढ़ाना पड़ता है, और उसी के आधार पे हम उस स्टडी को हम कर सकते हैं। यूजेस जो है अगर हम कहें कि केस स्टडी के जो है दैट इज इवोल्यूशन ऑफ अ पर्टिकुलर केयर अप्रोच। किसी एक पर्टिकुलर फिनोमिनन की अगर हम बात कर रहे हैं वहां पे नॉर्मली इट इज नॉट डीलिंग विद द पीपल दोज हु आर डूइंग द हार्डकोर साइंस। कि हार्डकोर साइंस वाले लोगों के लिए केस स्टडी बहुत ज्यादा नहीं आती। लेकिन जो कि अप्लाइड पार्ट कर रहे हैं साइंस का, जो कि मैं कहूँ कि सोशो बायोलॉजी कर रहे हैं या मेडिसिन का कोई हिस्सा जो कि सोशियोलॉजी के साथ में जुड़ा हुआ है उसको करते हैं, तो उनके लिए जो है इट इज मोर इम्पोर्टेंट, इट इज मोर रिलेवेंट, नॉट इम्पोर्टेंट, मोर रिलेवेंट फॉर देम। तो उस चीज के साथ में वो होती है। नाउ देयर इज समथिंग दैट इज पॉजिटिव डेविएंट अप्रोच। पॉजिटिव डेविएंट अप्रोच जो है वो हर कम्युनिटी और हर उसके ऑब्जर्वेशन के साथ में जुड़ा हुआ रहता है। कि बेसिकली एसेट बेस्ड अप्रोच होती है इसकी, और कम्युनिटी जो है वो रिसोर्सेज और जो उनके सारी चीजें हैं उसको, हाँ हेलो, एनीवन हैज आस्क्ड समथिंग? आप में से किसी ने कुछ पूछा? चलिए चलिए। तो पीडी अप्रोच जो होती है या डिविजन अप्रोच जो है हमारी, एक प्रॉब्लम सॉल्विंग अप्रोच है जो कि असेट के ऊपर आधारित है हमारी, और साथ में कम्युनिटीज हैव असेट्स और रिसोर्सेज बट डोंट हैव बिन टैप। कि उन रिसोर्सेज या उन जो असेट्स हैं उनको टैप नहीं किया गया, उनको एक्सप्लोर नहीं किया गया, वो उसके साथ में चलती है। जो हमारे पास पीडी मेथोडोलॉजी है उसके अंदर 4 डी, देयर आर 4 मेजर डीज, दैट इज डिफाइन, डिटरमाइन, डिस्कवर एंड डिसाइड। बिकॉज कि जब हमने कहा कि उनको एक्सप्लोर नहीं किया गया है आपके एसेट्स को या रिसोर्सेज को, तो उसको हमको डिफाइन भी करना पड़ता है, डिटरमाइन भी करना पड़ता है, उसको डिस्कवर भी करना पड़ता है, और उसको डिजाइन भी करना पड़ता है। तो दिस इज अगेन अप्रोच जो कि क्वालिटेटिव प्रोसेस में काम में आती है। पीडी अप्रोच जो है या उसका जो पीडी प्रोसेस जो है वो स्किलफुल यूज ऑफ एक्सपीरियंशियल लर्निंग मेथड्स का जो है उसका यूज किया जाता है, और उसके आधार पे हम चीजों को इंटरप्रेट करते हैं। और जो रिजल्ट्स होते हैं वो कम्युनिटी मोबिलाइजेशन, ओनरशिप होती है, डिस्कवरिंग ऑफ एग्जिस्टिंग सॉल्यूशंस जो होते हैं, क्रिएटिव न्यू नेटवर्क रिसोर्सेज होते हैं, इमरजेंस होती है, उन सारी चीजों को हम इसको करते हैं।
कब हमको यूज करना है पॉजिटिव डिविएंस? तो पॉजिटिव डिविएंस जो है वो बहुत ज्यादा एक्सक्लूसिव या टेक्निकल नहीं होता, बट रैशनल होता है। बिहेवियर और सोशल चेंज चाहिए होता है। प्रॉब्लम जब कॉम्प्लेक्स होती है, उसको हम दूसरे सॉल्यूशन उसके ऊपर काम नहीं करते, तब हमको पीडी अप्रोच यूज करनी चाहिए। नॉर्मली इट इज नॉट मच यूज बाय द पीपल दोज हु आर इन द साइंस। अगेन मैं ये कह रहा हूँ कि ये जो अप्रोचेस हैं, स्पेसिफिकली जैसा मैंने बहुत शुरू में कहा था कि क्वालिटेटिव अप्रोचेस जो है दैट इज मोर यूज बाय द पीपल दोज हु आर इन ह्यूमैनिटीज और इन द मैनेजमेंट, वो लोग ज्यादा यूज करते हैं। फिर उसके बाद पॉजिटिव डेविएंट इंडिविजुअल ग्रुप एग्जिस्ट होते हैं और उनके पास दूसरे सॉल्यूशन उपलब्ध होते हैं, तो उस चीज को वो देखते हैं। अगर मैं ये कहूँ तो पीडी अप्रोच के लिए जो क्वेश्चंस होते हैं, जो ट्रेडिशनल तरीका होता है उसके अंदर जो क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, तो ठीक उसके उलट होते हैं, डिविजन होता है, मतलब उसका ठीक उलट होता है कि व्हाट इज रॉन्ग। फिर उसी के अंदर अगर हम कहें कि वहां पे अगर हम पीडी अप्रोच की बात करते हैं तो वहां पे इसका ठीक उलट हो जाएगा, बिकॉज इट इज अ डिविजन। सो डिविजन में हम उसका ठीक उलट लेते हैं, व्हाट इज राइट, आपकी क्या जरूरतें हैं, आप क्यों काम कर रहे हैं। सो देर आर डिफरेंट एग्जाम्पल्स। हालांकि ये बाद में मैं आपके जो रिसर्च बोर्ड है आप लोगों का, जो कोटा यूनिवर्सिटी, उनके साथ में शेयर कर दूंगा, तो यू कैन रीड इट अगेन। और एक आधी किताब अगर मेरे पास है सॉफ्ट कॉपी, तो आई विल शेयर दैट विद द ऑर्गेनाइजर्स। बहुत सारी चीजें जो होती है बिल्कुल उसी का ठीक, कि जैसे अगर हम कहें कि किसी एक पर्टिकुलर चीज के लिए अगर हम कहें कि कुछ मिस हो रहा है बट क्या उपलब्ध है, तो दैट इज अ डेविएशन अप्रोच जो हम यहाँ पे बात करते हैं। फिर उसके बाद हम पीयर की बात करते हैं, तो पीयर इज समथिंग दैट इज पार्टिसिपेटरी, इथनोग्राफिक, इवोल्यूशन एंड रिसर्च। तो इन चार चीजों को जब लिया जाता है तो दैट इज कॉल्ड एज पीयर। इट इज इनोवेटिव, रैपिड एंड पार्टिसिपेटरी। जहां पे हम पहले जब बात कर रहे थे तो थोड़े लंबे समय की बात कर रहे थे, लेकिन यहाँ पे इनोवेटिव, रैपिड और रैपिड प्रोसेस होता है ये इस चीज को देखने के लिए। मेंबर्स ऑफ द कम्युनिटी जो है उसके अंदर अटेंड करते हैं और उनको एक ट्रेनिंग दी जाती है, और उस ट्रेनिंग के साथ में वो लोग इस चीज को करते हैं। किस तरीके से होता है कि इस चीज को हम कहें कि सपोज इफ यू आर कंडक्टिंग अ सर्वे, तो सर्वे के लिए अगर आप कुछ लोग हायर कर लें तो दे विल बिकम अ पीयर ग्रुप, और वो पीयर ग्रुप जो है वो आपका सर्वे करता है, तो दैट बिकम्स द पार्ट ऑफ दैट, और उसको आप ट्रेनिंग देते हैं। पहली ट्रेनिंग आपको सर्वे कंडक्ट करने की देते हैं, फिर आप उसके डेटा कलेक्शन की देते हैं, डेटा कलेक्शन के बाद में फिर आप उसको एनालिसिस की ट्रेनिंग देते हैं। सो डिफरेंट डिफरेंट काइंड ऑफ ट्रेनिंग्स जो है वो उस पर्टिकुलर प्रॉब्लम जो है उसके साथ में जितने इश्यूज हैं उन सब के साथ में आप जो भी ट्रेनिंग उनको दे रहे हैं, तो वो सारी चीजें हैं। तो जब आप बहुत सारे लोगों को इन्वॉल्व कर रहे हैं अपनी रिसर्च में इस तरीके की चीजों में, तो वो जो लोग होते हैं, तो जो हमने कहा कि क्वालिटेटिव रिसर्च का एक पीरियड जो है वो लंबा चला जाता है, तो उस पीरियड को कम करने के लिए पीयर अप्रोच अपनाई जाती है, जिसके अंदर कि आप लोगों को हायर कर रहे हैं या लोगों को शामिल कर रहे हैं जो कि इस तरीके की चीजें करेंगे। I'll just read out तो कैपेसिटी ऑफ द लोकल पार्टनर जो भी वहां उसके अंदर है उनके साथ में लोकल पार्टनर्स उसके एक्सपर्ट बन जाते हैं, बाद में आपको बहुत हेल्प करते हैं। इन डेप्थ अंडरस्टैंडिंग ऑफ द नॉलेज उनके साथ में आनी शुरू हो जाती है। टारगेट ग्रुप का पार्टिसिपेशन उसके अंदर बढ़ जाता है अर्ली स्टेजेस में, बाद में तो होता ही है खैर, बट अर्ली स्टेजेस में हो जाता है। आ, आ, और उन सारी पॉपुलेशन के पास भी हम पहुंच सकते हैं जहाँ पे कि हमको लगता है कि हम नहीं सर्वे कर सकते या हम उनको अप्रोच नहीं कर सकते, उनके पास भी हम जा सकते हैं। एंड द लास्ट इज पार्टिसिपेटरी एक्शन रिसर्च। पार्टिसिपेटरी एक्शन रिसर्च जो है putting research capabilities in the hands of the deprived and the defranchised people so that they can transform their life for themselves। कि हम वही काम उन्हीं लोगों से करवाएं जिनके पास इनका एक्सेस नहीं है। तो वो सारी चीजें जो है उसके साथ में आ जाती है। ट्रेडिशनल रिसर्च जिसमें एक्सपर्ट्स काम कर रहे हैं वो नहीं, जो कि एक्सपर्ट्स नहीं है वो काम करते हैं, क्योंकि एक्सपर्ट्स के साथ में बायसनेस आनी शुरू हो जाती है। जो कि नोविस हैं, जो कि नेवी हैं, उनके साथ में इस तरीके की चीजें नहीं आती। तो पार्टिसिपेटरी एक्शन रिसर्च जो है वो हम उसके साथ में कर सकते हैं। ऑल्दो दीज आर नॉट इन प्रैक्टिस फॉर द साइंस पीपल, जो कि मैंने कहा। और रिसर्च जो है वहां पे जो डिजाइन किया जाता है स्पेसिफिक इश्यूज के लिए किया जाता है, लोकल लोकल लोग ही उस चीज को डिसाइड करते हैं, वो सारी चीजें उसके साथ में आती है।
पार्टिसिपेटरी एक्शन रिसर्च जो है वो फैसिलिटेटर को किस तरीके से हेल्प करती है, वो आइडेंटिफाई करने में, प्रॉब्लम को आइडेंटिफाई करने में मदद करती है, रिसर्च मेथोडोलॉजी डेवलप करने में मदद करती है, डेटा कलेक्ट करने में मदद करती है, एनालाइज फाइंडिंग्स और मेक रिकमेंडेशन अबाउट द प्रॉब्लम इज हैज टू बी रिजॉल्व, उसके लिए मदद करती है। तो यहाँ पे जब हम बात करते हैं तो पार्टिसिपेटरी एक्शन रिसर्च में क्या हुआ कि वही लोग जो कि आपके ऑब्जेक्ट्स हैं, उसी ऑब्जेक्ट, वो सारे ऑब्जेक्ट्स जो हैं वो आपके साथ में काम करना शुरू कर देते हैं। तो these are the characteristics. This is participatory, this is qualitative, this is reflective, responsive, emergent and cyclical research होती है, ये इसके साथ में चलती है। These are the steps for the participatory action research. आप सोचते हैं, raise a question, seek answers, कैसे प्लान करते हैं, फील्ड वर्क एंगेज करते हैं, रिफ्लेक्ट एंड एनालाइज वाला पार्ट करते हैं। कब यूज की जाती है? तो रियल सिचुएशंस में यूज की जाती है। फिर उसके बाद में दे कैन बी यूज बाय द सोशल साइंटिस्ट। मोस्ट ऑफ द टाइम सोशल साइंटिस्ट के लिए मैंने कहा, जैसा शुरू से कह रहा हूँ कि दीज आर मोर रिलेवेंट विद द सोशल साइंटिस्ट, बट इट इज द पार्ट ऑफ दैट, तो उसके लिए है। एक्शन रिसर्च के आपके एडवांटेजेस जो हैं, पार्टिसिपेंट की फीलिंग जो है वो ओनरशिप की होती है कि ओके हम भी इसका पार्ट है। लाइक्लीहुड है, डेटा इंक्रीज द लाइक्लीहुड ऑफ द डेटा विल बी यूज, जो भी आपके साथ में है। रिजल्टिंग प्रोग्राम इंटरवेंशन जो है उसकी भी पॉसिबिलिटी या प्रोबेबिलिटी बढ़ जाती है। और पार्टिसिपेशन स्किल्स जो है वो पार्टिसिपेशन डेवलप जो है, पार्टिसिपेशन एक्शन रिसर्च जो है वो पार्टिसिपेंट स्किल्स को डेवलप करता है, कॉन्फिडेंस को डेवलप करता है बच्चों के साथ में या जिनके भी साथ में आप इस तरीके का काम कर रहे हैं, तो वो उस चीज को करता है। नाउ दूसरी जो क्वालिटेटिव अप्रोचेस जो आज की तारीख में और काम में आती है, दैट इज रैपिड असेसमेंट प्रोसेस है, रैपिड रूरल अप्राइजल है, पार्टिसिपेटरी रूरल अप्राइजल है, क्रिटिकल इंसिडेंट टेक्निक है, डेल्फी टेक्निक है, रिफ्लेक्टिव फोटोग्राफी है, फोटो वॉइसेस है, कम्युनिटी बेस्ड पार्टिसिपेटिव रिसर्च है, नैरेटिव इंक्वायरी है, बहुत सारी चीजें हैं। बट इन नटशेल व्हाट आई एम सेइंग दैट इज द सेकंड पार्ट वाज मोर रिलेटेड विद द पीपल दोज हु आर इन सोशल साइंस, उनके साथ में ज्यादा रिलेट करता है बनिस्बत की साइंस ग्रुप पीपल के साथ में। फर्स्ट पार्ट ऑफ द talk was more devoted to the people of the science. Here I am ending up. If anyone is having any question regarding the second part or for the first part, they can ask me. सर स्लाइड विजिट नहीं हो रहा। नहीं, स्लाइड शो मैंने बंद कर दिया अब, because we have come to the end of सर आपने जैसा बताया फिनोमेना के बारे में, सो सर कैन वी से दैट लॉन्ग टर्म ऑब्जर्वेशन कैन लीड अस टू डिराइव अ फिनोमेना? correct 100% correct. Can be changeable with time? मतलब it can Yes, change. that was there. Yes, that was there, and that is with the grounded theory part. Okay sir, thank you sir. Because if you are changing some phenomenon, then you need to give the constructive evidence for that, solid evidences for that, and that comes with the grounded theory. And Okay, phenomenons are changed, like जैसा मैं शुरू से कह रहा हूँ, शुरू से सिखाया जाता है बच्चों को। इनिशियली इट वाज सेड दैट द अर्थ इज फ्लैट, और अब हम कहते हैं कि इट इज स्फेरिकल। तो phenomenon has चेंज होते हैं phenomenon, but for the time they are considered as universal, right? And when a theory establishes, then it becomes the phenomenon. Any other? Sir, one more question actually. Sir, in the participatory action research, if we involve people, like we are including the people and they are helping us in research, so sir, इससे तो sustainable होगा ना, sustainable development की तरफ जा रहे हैं ना, if we are involving those people. Sir, for example, I am from wildlife science subject, so we think of conserving wildlife.
तो सर हम चाहते हैं कि जो लोकल पीपल है वो भी हमारे साथ इन्वॉल्व हो इन एनी वे, ताकि हम सस्टेनेबली वी कैन कंजर्व देम, बिकॉज दे लिव क्लोजर टू द वाइल्ड लाइफ, दे आर मोर Correct. कनेक्टेड, they have much Correct. more knowledge about them. Correct. So they will have a feeling of ownership. When the feeling of ownership is there, Yes, sir. तो आपके सारे will contribute. ऑब्जेक्टिव्स है वो अपना पूरे हो जाते हैं. जी सर. सर ओके सर, थैंक यू. जी. और किसी का कोई क्वेश्चन? Let me check the chat box. No message, so no questions. So, time to say goodbye. Thank you, sir. Thank you Thank you. for your valuable lecture. Thank you, sir. Thank you. Thank you, sir. Thank you, sir. Thank you. Thank you, sir.